for 120 minutes, in which we are going to have 90 to 100 minutes for the regular discussion, and the last 15-20 minutes you can ask any questions, right? बीच में interrupt करने की जरूरत नहीं है. Don't try to do interrupt in between because सारा मामला रुक जाता है. I will give you the time whenever whatever I am discussing, आपको last में time मिलेगा, and we have to end it by 10 today. Because there is a 2-hour break, and for the 2 hour we have to put the recording for the saving, right? Otherwise you won't get the recordings. Clear? Anshuman, good morning. Aishwarya, good morning. ठीक है, so students are still joining. This is the problem actually. संदीप, गुड मॉर्निंग. चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी बच्चे आते रहेंगे, उनकी प्रॉब्लम है. वेरी गुड मॉर्निंग. This is the first time I'm using this app. Otherwise we normally have the classes on the Zoom app, and रात में मैंने सोचा like around 12 or something, I thought that I should have this check, like I should buy the regular version, and they are charging 5,000 rupees for just having the 250 students. And then I thought that we can save this money, although like we don't need as an institution because we never had more than 100 students at a time, but this time we have to think about it. But thanks for your suggestions. आप लोगों ने मुझे बताया कौन सा सही है, अदरवाइज मैं पूरी रात लगा रहता. Akila, you no need to record this video. Actually, we are going to provide you the recording one, right? So just have chill. Don't take any tension. Class normal होती है. This is the first time you are having my regular class. Otherwise आपने YouTube में मेरी वीडियोस देखी होंगी, and there are so many limitations over the YouTube. एडिटिंग में टाइम लग जाता है, फिर सोचना पड़ता है कि सभी बच्चों के लिए. तो अब हम लोग थोड़ा सा पर्सनल चीज़ डिस्कस कर सकते हैं. यू आर लाइक माई फैमिली, राइट? इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, और अगले 3 दिन तक वी आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, एंड देखते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आर्क जेनेसिस, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट वी हैव रीच टू दिस लेवल. अदरवाइज लास्ट टाइम हम सोच भी नहीं सकते थे. टुडे आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट समथिंग फॉर यू. So thank you for your contribution, and around we have I think 170 students, which comes up around 40,000 rupees. So it's a not a very big amount, but it is again इतना भी कम नहीं है. We can do something. So I will share the details with you, like whatever the money we got, there is nothing hiding. There is a full transparency. Although I can charge it like a very regular thing, but again मैंने सोचा था because it is going to our last classes for this session. So कुछ अच्छे नोट पर ख़त्म करना अच्छा रहता है, ठीक है? So काफ़ी लोगों को होगी कि आप YouTube आर्क जेनेसिस को जानते हैं. हु इज़ अनुराग सिंह? दिस इज़ मी. यहाँ पर आप देखेंगे मुझे. अभी मैंने फ़ोटो क्लिक की थी, मतलब अभी नहीं है, कुछ टाइम पहले की है, बट इज़ द लेटेस्ट वन. करीब 15-20 दिन पुरानी फ़ोटो है, एंड दिस इज़ द लेटेस्ट वन इन माई फोटो, राइट? ओके, सो दिस इज़ मी. आई हैव कंप्लीट माई ग्रेजुएशन फ्रॉम चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर. आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, एज अ नेम सजेस्ट चंडीगढ़. एंड चंडीगढ़ के बारे में काफ़ी जानकारी है. जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, व्हेन यू आर गोइंग टू रीच योर द फर्स्ट सेशन, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर, द फर्स्ट थिंग दे विल टेल यू अबाउट द चंडीगढ़, बिकॉज चंडीगढ़ वाज द फर्स्ट प्लान सिटी इन इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है? माई ऑफिस was in Panchsheel Vihar, as there is a lockdown for the last 1 month, so we have closed it maybe, but again our classes are regular in this thing. My hobbies are like I like studying. Most of the time I used to study, like I never keep myself unlearned. जब भी टाइम मिलता है मैं थोड़ी पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ, इवन आपको पढ़ाने से पहले भी और आपको पढ़ाने के बाद भी. if any one of you, if you have some extra information or regarding this thing and it's feeling like it is interesting, then I will go through it for the internet or the Google and book, so I will read it. I like the teaching. My photography is also a passion. I won Lal Tilak National Award in 2013-14. Calligraphy, I like. You can see my background as well. Then sketching, traveling और भी बहुत कुछ है, आप सब जानते होंगे, ठीक है? तो जितनी वीडियो आप देखते हैं, ऑल द वीडियोस आर रिकॉर्डेड बाय मी. नॉट ऑल. विकास कुमार की कुछ वीडियोस हैं. देयर आर सम वीडियोस फ्रॉम द विकास कुमार. हर्षिता इज ऑल्सो वर्किंग फॉर इट, बट 95% वीडियोस जो आप देखते हो, इट इज ऑल रिकॉर्डेड बाय मी ओनली, ठीक है?
So for the Arc Genesis, we started, we considered that we started on 31st of July 2020. This was the time. Actually, we are working for the last 2 years for this, but dedicatedly we started last year, and even we started on 31st of July. So it is just around 10 months, and we have more than 11,000 subscribers just because of your support. So our classes will be in bilingual language. Please try to understand this thing. I will try, like I'm comfortable in Hindi and English both, but मुझे बच्चों का भी सोचना होता है, right? So there are some students which can only understand Hindi, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो English समझ सकते हैं, तो दोनों के लिए समझना. Whatever we are discussing, I will try to explain it in both the language, right? It is going to be bilingual language. We live in India, so Hindi is one of the prominent language. At the same time, we cannot ignore the English language. English सब लोग जानते हैं from the, especially from the South India. ठीक है. और आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट द पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग एंड इनोवेशन और समथिंग दैट डोंट नीड एनी बैरियर. देयर इज नो बैरियर रिगार्डिंग फॉर द लैंग्वेज, बिकॉज इट इज लाइक प्लान. यू विजिट एनी 2 BHK 3 BHK, इफ यू समवन इज गोइंग टू गिव यू द ड्राइंग, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. सो जैसे मैं नीदरलैंड्स में, आई हैव कंप्लीटेड माई इंटर्नशिप फ्रॉम नीदरलैंड्स एंड एवरीथिंग वॉज इन डच लैंग्वेज. और डच का मतलब होता है, समझ सकते हैं आप, इट इज टोटली, इट इज लाइक एन संस्कृत लैंग्वेज. सो तब भी काम हो गया था. सो प्लीज हैव सम पेशेंस एंड ट्राई टू गेट इट, कि दोनों को समझना है हम लोग, है ना. इट इज लाइक एन मोस्टली इट इज लाइक द चैरिटी, सो वी हैव टू मैनेज फॉर इट. आवर रेगुलर क्लास विल गोइंग टू बी द 90 to 20 minute. It is going to be the regular classes. So after end of the class, like at the end of the class, I will give you 15 to 30 minutes so that we can discuss some basic questions whatever you are having regarding the sections. Clear? It is going to be our normal session. Actually this time also students are joining. गोपाल, राधे राधे. अच्छा, चलो. तो आज का जो डिस्कशन है, इट इज़ हैविंग द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द जेई एंड नाटा. मैं कंसिडर कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिलोंग टू दिस कैटेगरी. जेई और नाटा के दोनों सेकेंड अटेम्प्ट बचे हुए हैं और आप दोनों ही एग्जाम दे रहे होंगे. तो इफ़ आई एम डिस्कसिंग अबाउट जेई and those students only dedicatedly working for the NATA, have patience, आपके ऊपर भी टाइम आएगा. and it is about the architecture. If anyone join or leave, a tab music is continuously played which is making a disturbance. Yes, I know this is the problem. But again, this is the first time we are using this tab, so you have to manage for it, right? So we are going to discuss some basic thing and then come to the aptitude part, like plan, elevation, mirrors. Of course some questions will be given and you are giving I'm giving you some time so that you can have some interaction, and at the end of the class we are going to have the questions and answers section. Clear? In normal time, in normal crash course, we took around 5 to 6 classes just to complete this aptitude part. But again, you guys, you can understand it is just a 3 days course and we cannot think about it to complete all the syllabus. But again, we will try to, so you have to be very attentive, right? तो इसमें ध्यान रखना, कुछ और करने की जरूरत नहीं है. So introduction to the architecture. So there are so many exams. For example, you can get the admission from the IIT JEE or the NATA exams, introduction to the architecture, and there are some college separate examination. For example, SAP is also having the separate exam, right? तो आप उनको भी check कर सकते हैं. I am not going to discuss this thing because I have already discussed in regular videos on the YouTube, like how the architecture started, what do you mean with the architecture. So just skip it. You might have some problem regarding the job potentials. Here there are so many job potential for the architect if you complete your graduation, right? Like you can join an architecture firm. You can also join the government, the state government or the central government. Like there are so many departments like town planning, town and country planning, PWD and CPWD. There are so many government officials. You can also join as an academician institution as a faculty member if you complete your masters as well. You can also start your own practice. For example, I am doing this thing. You can also pursue the higher education. You can do the MArch or MBA or something, the masters. You can also work as a estate valuers, interior designer, urban designer, landscape architecture. But for this, you have to do some other course as well. Like for if you want to become an interior designer after architect, so you must have a license for. You have the license from the architecture, but you have some certification from the interior designer. Same thing goes for the UD and urban designer. That's mean UD and landscape architect. You can also work as a project manager. This is one of the highest likely stream, specifically for the institutions. They are working in foreign based. Like if you want to complete your masters, so one of the main things you can do the project management, right?
You can also work for the multimedia, computer softwares, ITs, even as you know that there is a game PUBG, उसके अंदर भी आर्टेट की जरूरत पड़ी होगी, बिकॉज like an engineer, he don't know that कैसा काम होता है. So there are so many things. जब आप मूवीज में जाते हो, so आप सेट देखते हो, सेट इज ऑल्सो डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट्स. सो देर आर सो मेनी डिफरेंट डिसिप्लिन जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो. मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, लाइक माई स्पीड इज क्वाइट नॉर्मल. आई नो बिकॉज आई हैव टू मैनेज विद द टाइम. तो थोड़ा सा मेरी जो स्पीड रहेगी थोड़ी फास्ट रहेगी, तो मैनेज कर लेना आप, अदरवाइज काफ़ी कुछ रह जाएगा हमारा. सैलरीज का एक्सपेक्टेशन क्या है, आप वो चीज़ चेक कर लेना. लाइक सैलरी एक्सपेक्टेशंस नॉर्मली इफ़ यू ग्रेजुएट एज ऑफ नाउ, सो यू विल थिंक अबाउट इट टू गेटिंग अराउंड 20 to 40,000 सैलरी एज अ नॉर्मल, इफ़ यू आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और ज़्यादा बेकार ना हो तो. ठीक है. And after 5 to 6 years, you can think about it 50 to 80,000 salary. My last salary was 67,000. After like for the working for more than 2 or 3 years. Although I do the photography, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा मिल जाता था regarding this thing, but you can think about it. ठीक है. इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे इन सब चीज़ों के लिए. Now come to the JEE examination. So you must know the pattern of the JEE. Yes, don't worry, like आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. अभी जो भी आप कर रहे हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग द सेशंस, सो प्लीज अपना ध्यान रखो, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना. आपको रिकॉर्डिंग्स होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग लास्ट में देख लेंगे. ठीक है प्रिया, चलो. सो फॉर द IIT JEE एग्जामिनेशन पेपर 2 जो अभी पोस्टपोन्ड है, जब होगा आपको अपडेट मिल जाएगा. एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एनी डेट. सो इन मैथमेटिक्स, सो 100 marks, like it is going to be 400 question paper, 400 number marks. Out of 100 marks will be from the mathematics. So if you are targeting SPA, IITs, so you cannot leave this topic. जो लोग कोचिंग में बताते हैं कि you can leave the mathematics part, it is not possible to get a good college if you are leaving mathematics. At least not I'm not asking for the 25 questions to solve, but at least I am asking to 8 to 10 questions. You pick up some specific point जहाँ पर आपको अच्छा लगता है, work for it, and at least have the 8 to 10 questions correctly. Then come to the aptitude, which is going to 50 marks. एंड एप्टीट्यूड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 35 + 15. 35 के अंदर वही आते हैं मैथ लाइक आर्किटेक्चरल क्वेश्चंस, एंड 15 क्वेश्चंस कम फॉर द जीके के लिए जिन लोगों ने पेड कोर्स लिया हुआ है, सो वी वर्क फॉर दिस. और आपने नहीं लिया हुआ है तो यूट्यूब के अंदर 10 से 12 वीडियोस पड़ी हुई है, इन फ्यूचर भी आती रहेंगी. आई विल ट्राई. अभी हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है, सो आई एम नॉट हेयर टू प्रमोट दिस इज नॉट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर मी, बट आई एम टेलिंग टू यू दिस इज द लास्ट क्लास फॉर दी, लाइक अगले 2-3 क्लास रहेंगे, उसके बाद हम कोई सीजन पर काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अगर सब कुछ सही चलता है तो. although if we get many students then we can think about it, but although we have to work so many other things, like हमें system upgrade करना है, we have to work out for the website and material for the next year, so we thought that it is final. So it is going to 200 marks, and for the drawing it is going to be 100 marks. तो आप समझ सकते हैं 200 + 100 + 100 it is going to be 400 marks. And if you targeting for SP or some other good college, then you have to be score at least, of course it is come to the percentile basis, but you have to be have the like 270 to 80 marks at least. And if you are having some quota or some reservation, then it's a benefit. It depends. But remember one thing, those students think that it is easy for the SC and STs, and those students belong to this category and they thought that मेरे तो आराम से हो जाएगा. ऐसे नहीं होता है. Competition is always there. Having advantage does not guarantee success. This is one of the my favorite quote. अगर आपको एडवांटेज मिली हुई है, इसकी कोई गारंटी नहीं है आपको सक्सेस मिलेगी. सो इफ यू आर हैविंग द एडवांटेज, यू हैव टू वर्क आउट फॉर इट. ठीक है. सो आउट ऑफ 400 you have to work out for the at least 40 marks from this section, and 180 it is quite easy. If you like if you're watching our YouTube videos, you can easily get 170 180 190 numbers, right? And for the drawing, अगर कुछ 2 महीने प्रैक्टिस करोगे, इट विल कम टू आई थिंक 70 to 80 मार्क्स. जस्ट टेक इट 80. सो 88 160 कम, इट इज कम 300 मार्क्स. क्वाइट इजी, एंड ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. दिस इज द टेक्निक फॉर द JEE एग्जामिनेशन. आई होप आई एम क्लियर. कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर अभी तक, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स अगर कुछ भी क्वेश्चन हैं. देविका, लाइक आई कैन नॉट रिपीट इट बिकॉज इट इज ऑल रिकॉर्डेड, तो आप वो देख लेना इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि एक बच्चे के लिए काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी ना. आप समझ रहे हो इस चीज़ के लिए, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. नाउ कम टू दी नाटा पैटर्न. नाटा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिहेव कर रहा है. आई हैव नो आइडिया वाई दे आर बिहेविंग इट, लाइक पता नहीं कौन इनको
हाँ वो थोड़ा चेंज हो सकता है, 20 क्वेश्चन जीके वो सब चलता रहता है, लेकिन 50 क्वेश्चन का है एवरेज। ठीक है, परसेंटाइल के लिए यू हैव टू बी स्कोर एटलीस्ट 99 परसेंटाइल इफ यू आर टारगेटिंग द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। ठीक है, अभी नाउ कम टू दी नाटा। सो नाटा के अंदर क्या है, फ्रॉम द लास्ट 3 years आई विल शो यू सम पैटर्न हाउ दे आर चेंजिंग, और पता नहीं कौन को गाइड करता है इस तरह की चीज़ें करने के लिए, बट अगेन so we are taking the example of 2019, 20 and 21 how they have changed the pattern. In 2019 this was the pattern for the NATA. So mathematics question was 40 marks, and for general aptitude for 80 marks, ultimately is going to 120 marks, and you are going to have the drawing test which is going to have two questions out of 40 to 40 80, so it is going to be 120 plus 80 200. Last year due to COVID they scrapped this pattern drawing, and they have introduced some changes in this part. Last year was the pattern for 2020, it was the, please mute yourself यार, इतना करो आप इस चीज़ के लिए ना, डिस्टेंस होती है। आप पहली बार क्लास नहीं लगा रहे हो ऑनलाइन, आपको सिर्फ जानकारी होगी, आप यू आर ऑलरेडी कवरिंग फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस फॉर द लास्ट 1 year, तो जस्ट बिहेव रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, सो फॉर द 2020 this was a pattern like they give the part 1 and part 2. Part 1 was for the 125 marks and part 2 was the 75 marks. So I can understand this situation because last year it was a COVID, so they might introduce this kind of the concept because of the COVID, so it was extraordinary conditions. But for this year, so this year they have 2021. So this is the pattern, like they just said they are going to 125 questions, and out of 125 questions, one question will be for, some question will be for 1 mark, some question will be of the 2 marks, and some question will be of 3 marks, which is going to be sum as a 200. Previously it was 75 marks as a qualify, you need to be qualified at all. Believe me, it is like if you are completing, you are thinking that I want to be taken admission in the private college and I will get with the donation, but no, you have to be qualified in NATA examination. This year they have reduced it from 75 to 70 marks. वो बोल रहे थे just because of COVID, but जो पैटर्न चेंज किया गया था, it was so drastically, it was so surprising for the NATA, for the CO itself, so they have reduced it. वो लोग ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, so now as of now it is a 70 marks you have to be at least have for if you want to become an architect, if you want to take an admission in architecture college, in any college, either government or the private college. Clear है यहाँ तक? This is a slide like what's the difference between the NATA and the BR and which is more tough and important. ये माइंड में क्वेश्चन आते रहे होंगे आपको, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. You can get into architecture like BHL of architecture by clearing NATA or the J examination or some other they have some separate admissions, right? JPP2 can get you in CCA, NITs and various good national level college if you score well. It depends on your ranking, right? नाटा के अंदर क्या होता है, नाटा इज कंडक्टेड बाय COA, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, और ये एग्जाम कंडक्ट कराता है. इट इज जस्ट एन नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. कॉलेज की काउंसलिंग इज डिपेंड्स ऑन द स्टेट टू स्टेट, इट डिपेंड टू द इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशंस. सो देर इज नो सेपरेट, देर इज नो कॉमन क्राइटेरिया. फॉर एग्जाम्पल फॉर द JEE यू कैन डू योर काउंसलिंग बाय द JOSA. सो इट इज लाइक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम. वो सब बता देंगे आपको कैसे कैसे काउंसलिंग होती है JEE की. बट फॉर द नाटा, इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द गुजरात, तो यू हैव टू चेक ऑन द रेगुलरली बेसिस द गुजरात वेबसाइट हाउ और व्हेन दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर काउंसलिंग प्रोसेस. इफ यू आर फ्रॉम द कर्नाटका, यू हैव टू लुक आफ्टर योर कर्नाटका वेबसाइट. मोस्ट ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर देयर स्टेट ओनली. फॉर एग्जाम्पल JJ महाराष्ट्र में आप लोग कुछ बच्चों का ड्रीम भी होगा, इट इज ओनली फॉर द महाराष्ट्रियन. गो देयर वेबसाइट, दे हैव क्लियरली मेंशन इट. ठीक है, आई थिंक 80 to 90% सीट्स आर रिजर्व फॉर द महाराष्ट्रियन if we are talking about the Maharashtra. Same things goes for the Gujarat, only 2 seats are available for the outsiders. So आप वो check कर लेना if you want to know more regarding the counseling. So there are so many videos I have already made for the last year, so you can go through it like Gujarat, Karnataka, I think 4 to 5 states, the major states I have covered it. Clear? So NATA is a national level undergraduate exam which is conducted by the COA at the admission of 5-year course. NATA can get you in the various state level colleges. NATA is the exam for mainly college under architecture association, which is mainly private, and college under trust. So this is one of the major difference. You want to become an architect, so it is one of the deciding point in your life कि आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में देना चाहते हैं.
So one of the thing like you should know about the architecture. First of all, it is only the profession which have the culmination of the two different disciplines. Like architecture can be art at a time, and it is depend on the technology. It has to be a technical field. We can easily divide these topics or disciplines into part, like humanity या art subject होते हैं, history and all this thing. और हम बात करें इंजीनियरिंग के टॉपिक्स होते हैं, लाइक इंजीनियरिंग होती है, इट इज क्वाइट टेक्निकल. लेकिन आपने देखा होगा इंजीनियर्स आर नॉट आर्टिस्ट, लाइक उनका दे आर लैकिंग समथिंग आर्टिस्टिक और इन सब चीज़ों के लिए. और जो आर्टिस्ट लोग होते हैं दे आर समहाउ दे आर लैकिंग इन टेक्निकल फील्ड. आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द गुड प्रोफेशन जहाँ पर आपको आर्ट भी करने का मौका मिलता है एंड यू विल ऑल्सो गेट द सेम टाइम टेक्निकल एजुकेशन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई स्टूडियो एंड आई वॉन्ट टू मेक इट. मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बनाया, लाइक आई वॉन्ट टू मेक सम पेंटिंग एंड ऑल दिस थिंग. इट्स डिपेंड ऑन माई आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस. But at the same time, what should be the size of the column, what should be the roof and what should be the thickness of the wall, it depends on the technology, right? It's depends on technique. So आप अगर ऐसा फील्ड सोच रहे हैं जहाँ पर आपको टेक्निकल भी समझना हो and you are also getting the option for your observation or for your innovation, it's architecture only. Clear? It is innovative, at the same time it is very creative. Like architecture के जो एग्जाम होता है in my college, it is a design exam. एंड इट एग्जाम इज फॉर 21 आवर्स, आई थिंक 20 आवर्स, 20 घंटे का होता था इन अ फर्स्ट डे. आप जा सकते हो, यू हैव टू वर्क फॉर द 6 आवर्स. आप वापस आ जाइए हॉस्टल में इन कॉलेज, अगले दिन फिर जाते हो. देन वाई? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू चीटिंग इन द आर्किटेक्चर. बहुत सिंपल तरीके समझते हैं. देर आर आई थिंक 186 स्टूडेंट्स ओवर हेयर. यहाँ पर मैं आप लोगों से बोलता हूँ दिस इज अ एरिया बाई 12 फीट बाई 12 फीट, और सर जैसे 12 मीटर बाई 12 मीटर, और आपको कुछ बना कर देगा लाइक आई वांट टू हैव द 2 BHK ओवर हियर. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप सेम बना दो, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल दैट ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द सेम डिजाइन. सो देर इज नो ऑप्शन फॉर द चीटिंग. सो इट इज क्वाइट क्रिएटिव एंड इट इज वेरी इनोवेटिव. क्लियर? एज सच देर इज नो डेडिकेटेड बुक्स ऑन इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम करना चाहते हो स्कूल के बारे में तो आपको पढ़ना पड़ेगा गूगल पे जाके, like you want to make an school or you want to make an hospital. So as such there is no dedicated books. and जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज में होती है, on the very first day they will give you 13 set of book. 13 बुक पकड़ा देंगे आपको अभी, और काफ़ी भारी भारी होती है, फिर पढ़ते रहो. आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं होता है. इट्स अ प्रैक्टिकल डिसिप्लिन. सपनों में नहीं चलता है. लाइक वॉट एवर यूर डिजाइनिंग इट इज पॉसिबल ऑन द रियलिटी इटसेल्फ. सामने बना कर देख सकते हो आप, ठीक है? एक्सपोजर ऑफ मैनी अदर सब्जेक्ट. लाइक अगर आप एक हाउस बनाना चाहते हो इन शिमला एंड यू वांट टू मेक एन हाउस इन दिल्ली, so you have to understand the polity, geography, economy. like the same design cannot be implemented in the Shimla itself. और शिमला का जो डिजाइन है वो यहाँ पर नहीं हो सकता है ना? So it depends on the many different subjects. So you must know something about. There is a very famous quote that for being an architect you should know something for everything. आपको हर फील्ड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होना चाहिए, ठीक है? इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट और द मेडिकल फील्ड, अगर आप computer science के students हैं, you must know about the computer science only. Like there is no need for knowing the mechanical or something. But in architecture, you should have some experience of the different disciplines. There are so many trips. जा सकते हो. Like I am a traveler of course, and I have traveled I think most of the India, more than 20 countries in my college itself. तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा घूमता था. लाइक एवरी 6 मंथ्स हमारा ट्रिप होता था. 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 18 दिन का ऐसा ट्रिप रहते थे. एंड ये तो ऑफिशियल ट्रिप होते थे. हम लोग भी खुद ट्रिप रखते थे, और कभी सीनियर के साथ चला गया, कभी जूनियर के साथ. सो आउट ऑफ द 5 years आई सपोज 2 साल तो मैंने घूमते हुए निकाले हैं इन माई कॉलेज लाइफ, ठीक है? नेक्स्ट कम टू द इंटर्नशिप. आपको 7th और 8th सेमेस्टर में एक प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए यू हैव टू डू द इंटर्नशिप. यू कैन डू इट फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम फॉरेन, इट डिपेंड्स ऑन यू. आई डिड फ्रॉम नीदरलैंड्स. एंड द कॉलेज लाइफ नॉर्मली अच्छी होती है आर्किटेक्चर कॉलेज की. अभी आपके लिए अच्छा नहीं है बिकॉज इट इज़ कोविड टाइम. तुम लोगों को भी तरस आता है कि फर्स्ट ईयर आप लोगों का है निकलेगा. फर्स्ट ईयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ईयर इन योर कॉलेज लाइफ. रैगिंग, नए नए लोगों से मिलना, डिफरेंट चीज़ें आपको आती हैं. इन हॉस्टल यू लर्न सो मैनी थिंग. घर बैठे हो क्या पढ़ोगे, चलो है. लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी हैं. फॉर एग्जाम्पल देर आर कंप्लेंट रिगार्डिंग द होमवर्क, हार्ड वर्क. बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इस चीज़ के लिए मैं सही जवाब नहीं दे सकता हूँ आपको, बिकॉज इन माई कॉलेज टाइम मैंने कभी मेहनत नहीं की थी. नॉर्मली मैं इतना, चलो छोड़ो, इसको डिस्कस नहीं करते हैं, अगेन हमारा पूरा टॉपिक रह जाएगा. लेकिन अभी समझो कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही थी. लाइक मैं पूरे दिन बाहर रहता था. लास्ट 6 महीने मैंने कुछ काम नहीं किया. लास्ट में जाके सबमिशन दिया एंड दैट्स इट. माई कॉलेज वॉज लाइक वेरी ओपन फॉर इट, ठीक है? इट इज़ क्वाइट कॉम्पिटिटिव. अब आज आप सोच कर देखो 186 स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग हेयर.
तो आप समझ सकते हो कि कितना कंपटीशन है, मार्केट में काम बहुत कम है। ओनली 2 to 3% इन इंडियन पीपल दे हैव कंसल्टेड विद द आर्किटेक्ट्स, नहीं तो खुद ही ठेकेदार से मिले खुद ही डिजाइन कर लेते हैं। और पॉइंट भी क्लियर है, 30% बीपीएल पॉवर्टी लाइन है, उन लोग खाना नसीब नहीं होता है, तो हाउ कैन दे थिंक अबाउट टू हैव टू हायर एन आर्किटेक्ट। जो बड़े आर्किटेक्ट्स हैं उनके ऑटोमेटिक प्लान्स बने होते हैं, और जो मिडिल क्लास है हमारे इंडिया की, दे डोंट बिलीव इन आर्किटेक्ट्स। उनको ऐसे लगता है कि हम क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं, लाइक इफ वी हायर एन आर्किटेक्ट ही विल चार्ज 1 लाख रुपीज, तो जो 10 लाख का बजट 11 लाख में कर देगा। बट इट इज नॉट ट्रू, देयर इज अ लैक ऑफ द अवेयरनेस, इट इज वेरी डायनामिक, हर दिन चेंज होता है आर्किटेक्चर, हर दिन मटेरियल्स आते हैं, एवरी टाइम यू नीड टू अपग्रेड इट। द सेल इज क्वाइट लो बिकॉज इट्स अ 5 year प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मली ग्रेजुएशन आप 3 सालों में हो जाती है, इंजीनियरिंग कैन बी डन इन 4 years, बट फॉर द आर्किटेक्ट यू हैव टू वर्क फॉर द 5 years एंड द सैलरी इज क्वाइट लो, लाइक 30,000 रुपीज इफ यू ग्रेजुएट नाउ। तो लगती है कि यू हैव स्पेंड इट फॉर द 5 years और आपको जाके रहती है। अगेन देयर आर सो मेनी प्राइवेट कॉलेजेस which are there working for the commercialization of the education, they are only targeting for your money. We are also a coaching center as Arc Genesis, but we'll try to keep it as reasonable as possible, जितना भी हो सके, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, इट्स अ रियलिटी। और ये गलत भी नहीं है, बिकॉज दे आर हेयर फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर द सोशल सर्विसेज, ठीक है। फिर अगेन देयर आर सो मेनी एक्सपेंस ऑफ द मटेरियल, मॉडल मेकिंग एंड ट्रिप्स, वो भी खर्चा करना पड़ता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सबमिशन बनाओगे यू हैव टू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ द A1 शीट, और A1 शीट का खर्चा जो आता है अराउंड 100 रुपये 200 रुपये, एंड यू सेल इफ यू मेड दी 10 ड्रॉइंग्स, सो 2,000 रुपीज ऑन 1 सबमिशन। तो आप समझ सकते हो 20,000 के आसपास, 20,000 रुपीज फॉर अ ईयर। यू कैन थिंक अबाउट मटेरियल, मॉडल मेकिंग एंड ट्रिप्स का तो आपके ऊपर है, जितना जाओगे। वैष्णो देवी जाओगे तो 4,000 रुपये खर्चा आएगा, और गोवा जाओगे 40,000 आएगा। सो डिपेंड्स आपके चॉइस के ऊपर। चलो आगे आते हैं, ये सब पढ़ देख लेना दिस वीडियो, लाइक यू कैन वॉच इट, लाइक आर्किटेक्चर इज लॉट ऑफ फन। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको पढ़ने के बाद। तो अगर आप जानना चाहते हो देन आर्किटेक्चर अच्छा फील्ड है या नहीं, हाउ द आर्किटेक्चर इज फील्ड, सो इसको जाकर पढ़ लेना इस वीडियो को, यहाँ पर जाकर कि मैंने सारा इसमें लिखा है हाउ इट इज़ फन। यहाँ पर भी देख लेना, मोस्ट इंजॉयबल एंड चैलेंजिंग एंड द इंजॉयबल इमेजिनेबल, एवरी बिल्डिंग इज डिफरेंट, एवरी प्रोजेक्ट डिफरेंट। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, ऑल्दो इस सब चीज़ों को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी इश्यूज। गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा नहीं है, प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है। यू स्पेंड 5 years स्टडिंग एंड अनफॉर्चुनेटली नो यू कम टू द प्राइवेट कॉलेज आफ्टर पेइंग अराउंड 5-10 लाख रुपीज़ एंड स्टार्टिंग सैलरी इज 20-25 समथिंग। तो ये प्रॉब्लम भी रहती है, आपने 5 साल वैसे ही लगाए हैं। और यहाँ का जो वर्क कल्चर है, द वर्क कल्चर इन इंडिया, इट्स लाइक इट इज़ नॉट प्रो लेबरर। कभी जो लोग आर्किटेक्ट हैं, जैसे हर्ष बता रहे हैं कि उनके घर में सभी आर्किटेक्ट हैं, जो भी आपके आर्किटेक्ट फ्रेंड्स हैं उनसे जाकर पता करो। कभी हमारे जो आर्किटेक्ट फील्ड है 9 बजे तक लाइक काम चलता रहता है आर्किटेक्चर में, ऐसी आपकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इफ़ यू आर वर्किंग अंडर समवे, ठीक है। But again, like the architect as a discipline, it can be good, it can be bad. What I believe, it depends on your interest. For example, I am also an architect. मैं normal architect नहीं कर रहा हूँ, I am working on it as startups. So मेरा थोड़ा अलग है, मेरा है I enjoy my life, मुझे टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती है। My office, the deadline is 5 PM, 5 बजे के बाद हम किसी भी एम्प्लॉय को नहीं रखते हैं इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आउटसाइड। इतना गवर्नमेंट में नहीं होता है। सो डिपेंड्स आपके इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, और हम लोग बिलीव करते हैं लाइक फॉर द इनोवेशन, सो हमारा कभी ऐसा नहीं रहता है। सो डिपेंड करता है, लेकिन ऑल्दो द वर्क कल्चर इन इंडिया इट इज नॉट सो गुड फॉर द आर्किटेक्ट्स, इवन नॉट फॉर द आर्किटेक्ट ओनली, इट इज लाइक फॉर द ऑल द प्रोफेशन, दे विल ट्रीट यू लाइक एज अ लेबर, ठीक है। Now what should be the strategies for your exam, like for the JEE or for the NATA? First of all, you have to check the syllabus. Don't believe on the NATA or something, वो तो कुछ बताते ही नहीं है, but for the JEE you rely on it. JEE के अंदर आपको syllabus defined है and they work on the same pattern so that student can easily prepare well. You should check the previous year question paper. Drawing is important and drawing cannot be improved within a day. You have to work for the at least 2 months, 3 months. Paper is going to postpone and you have a golden opportunities. If you are not good in drawing, start working for it. Time लगेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। And I believe that it is not a game of the remembrance, it is a game of recalling. Recalling क्यों बोल रहा हूँ मैं? Because in all the examination you will get the option. Like MCQs में क्या होता है, एक क्वेश्चन होगा and some options होंगे A B C D। कभी ऐसा हो आपकी लाइफ में, ऐसा सोच कर देखो,
आप किसी बंदे से मिले हो, यू हैव मेट अ पर्सन इन योर लाइफ, और कभी दोबारा मिलते हो तो यू ऑलवेज थिंकिंग कि यार इस बंदे से कहीं मिला हूँ मैं, लाइक आई हैव मेट दिस पर्सन बिफोर। क्यों होता है? बिकॉज आप एक या दो बार मिले होते हो, रिमेम्बरेंस इज देयर बट देर इज नो रिकॉलिंग। सेम क्वेश्चंस, सेम थिंग गो फॉर योर एमसीक्यूज। क्वेश्चन भी वहां पर है, आंसर भी वहां पर है, बिकॉज दे आर गिविंग द एमसीक्यूज, सो दे मस्ट गिव वन, they must give one right option, but you are not able to pick it up. The reason is because you are not able to recalling कैसा होगी? रिविजन। सो रिसोर्सेज इज नॉट द की, रिविजन इज द की। जितना रिवाइज करोगे उतना आपका फायदा होगा, इजी हो जाएगा। क्वेश्चन है, आंसर भी है, क्लिक क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पर सॉल्व करते हुए, ठीक है। और ये सब चीज़ें आती हैं तो नॉर्मल बैच के लिए हैं। स्टेशनरीज के लिए यू कैन बाई HB 2B 4B 6B, और बाकी बता देंगे। इरेजर उरेजर कार्ट्रिज शीट ले लेना थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। इस तरह का पेपर आता है आपके साथ फॉर द जेई, जहाँ पर मैथमेटिक्स क्वेश्चन में हटा दिए हैं। सो सम प्लान एलिवेशन मिरर जो आज हम लोग देखने वाले हैं, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। एंड लास्ट के जो 15 क्वेश्चंस होते हैं, 15-20 क्वेश्चंस जो होते हैं, इट इज़ फॉर द जीके। जीके से लोग डर जाते हैं, बट जीके कैन नॉट बी इम्प्रूव इन अ मंथ और इन अ 2 or 3 मंथ। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। उसका तरीका अलग है कैसे आप जीके इम्प्रूव करेंगे, लेकिन इतना जल्दी इम्प्रूव नहीं होती है, ठीक है। इफ समवन इज गिविंग यू 2 or 3 स्लाइड्स और वीडियोज, दे आर मेकिंग फॉल, और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लाइक दे आर गोइंग टू आस्क 4 to 5 क्वेश्चन, देयर आर सो मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो ये धीमे धीमे आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन। ये जेई का एग्जाम है, आप लोगों ने देखा होगा, चेक कर लेना। अगर हम बात करें नाटा का, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन रिगार्डिंग नाटा लास्ट ईयर एग्जामिनेशन। कैसा क्वेश्चन आए थे? दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक एक इमेज दे रखी थी आपको, एंड यू हैव टू चूज हाउ मेनी फेसेस डू यू सी इन द गिवन पिक्चर। तो जितने आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं उतने गोला लगा जाना था आपको। टोटल वाज 13 इन दिस इमेज। If someone choose the option 12 as a right option, so it was given 12 marks. Those choose 13, they were given 17 marks, and those given 8, they will give, they have given 7 marks. and जिस बच्चे ने 15 फेस देखे थे उसको 0 नंबर मिला था। क्या लॉजिक है? नो आइडिया। क्लियर? सो मोस्टली इट इज लाइक दिस। काफी प्रॉब्लम रही बच्चों को, फिर सेम पैटर्न फॉलो किया इन्होंने। सो आइडेंटिफाई द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल प्रिंसिपल इन द गिवन 2 डायमेंशनल। ठीक है रूपम, आपको कर देना, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं इनका लॉजिकोलॉजी क्या है, खैर वो चीज़ नहीं है। तो आपको एक इमेज दी हुई है, इस इमेज के अंदर आपको बताना था, दे आर गिविंग द सम सेट ऑफ सम टर्मोलॉजीज, और ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए थी, आपको चूज करना था। ऑल्दो दे आर सेइंग कि इसमें सिमेट्री है, बट आई डोंट फाइंड एनी सिमेट्री। लाइक सिमेट्री को वी कैन हैव द सिमेट्री लाइक हेयर, छोटे पार्ट्स में हो सकती है, बट एज अ ओवरऑल इमेज देयर इज नो सिमेट्री एट ऑल। उनको दिखाई दे रही थी। सो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या ऑप्शन है, आपको हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर सेइंग दैट डिसीजन इज बाइंडिंग ऑल द स्टूडेंट्स। अब वो आप 3000 रुपये लें, आंसर की के लिए कुछ भी करें, इट देयर मोनोपली, सो दे विल डू इट। फिर इस तरह क्वेश्चन आए थे, सेम चीज, वन इमेज इज देयर, सो यू हैव टू चूज, यू हैव टू पिक आउट सम प्रोमिनेंट फीचर्स। फिर सेम क्वेश्चन लाइक दिस। तो इस तरह के सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आए थे, इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। लास्ट ईयर कलर थ्योरी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कलर थ्योरी के, इस बार कुछ भी नहीं दिए। और ऐसे क्वेश्चन आए थे किसी बच्चों को पढ़ना मुश्किल है, लाइक वी डिड नॉट नो अबाउट दिस थिंग, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस सेम थिंग फॉर द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। इवन ही इज वांट टू टेक एडमिशन इन आर्किटेक्चर फील्ड, ही इज नॉट एन आर्किटेक्ट, तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे बच्चों से। बाकी कुछ क्वेश्चन वगैरह ये सब साइंस लाइक फिजिक्स उसके आए थे। ओके सर गो स्लो, ठीक है, थोड़ा आराम से कर लेते हैं, ठीक है। दिस वाज सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर मैथमेटिक्स एंड द फिजिक्स। प्लान एलिवेशन ऐसे क्वेश्चंस आते थे ऐसे, ठीक है। फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, दे वर आस्किंग दिस टाइप द क्वेश्चंस।
नाटा 2021 का एग्ज़ाम आपने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर हम लोगों ने शेयर किया हुआ है, और उसके ऊपर वीडियो भी डेडिकेटली आई हुई है. सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम ओवर इट. आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ अपना एग्जाम दिया है, एंड यू नो द बेसिक पैटर्न फॉर दिस ईयर. 125 क्वेश्चन आर देयर, एंड 2 नंबर 1 नंबर कितने दिए हैं ये सिर्फ उनको पता है, वी डोंट नो. आपकी आंसर शीट मिली होगी आपको, बट दे आर नॉट गिविंग योर रेस्पॉन्स की, तो उसको लेने के लिए यू हैव टू पे 3000 रुपीज़. आई हैव नो आइडिया क्या लॉजिक है उनका, बट कर रहे हैं. ये क्वेश्चन चेक कर लेना, ये मैंने शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें. लॉजिकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लॉजिकल होना जरूरी है, बट लाइक रिडल्स देना, इफ इट इज अ पार्ट, इफ सपोज दिस इज एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल, लाइक नीट का एग्जाम है, आप आर्किटेक्चर वाले क्वेश्चन देना स्टार्ट करोगे तो क्या फायदा उस चीज़ का, है ना. डिपेंड्स. आर वी गोइंग टू एप्टीट्यूड क्वेश्चंस टुडे? यस, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग ऑन दिस टॉपिक. ठीक है. सो दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग योर जेई और नाटा. यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर हो गया है, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी हैव द कंस्ट्रेंट फ्रॉम योर टाइम. राइट नाउ कम टू द थिंग. एप्टीट्यूड के अंदर आज का जो टॉपिक है, प्लान, एलिवेशन, मिरर, हिडन फिगर, सरफेस काउंटिंग, अनफोल्डिंग, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, लेकिन हल्का सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ये क्यों होते हैं? देखो, इन रियलिटी वी परसीव द वर्ल्ड इन 3D. हम कुछ भी चीज़ देखते हैं, अगर आपके हाथ में लाइक इट्स अ मग, सो ये 3D में है ना, ये 3D में. अगर आपकी बॉल है, इट इज़ ऑल्सो इन 3D. जो भी स्पेसिस है, इट इज़ ऑल्सो इन 3D. द बिल्डिंग यू सी, इट इज़ इन 3D. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू मेक सम ड्राइंग, यू डू सम पेंटिंग, स्केचिंग, यू हैव टू वर्क ऑन द 2D मीडियम. पेपर जो होता है 2D होता है, जो शीट्स होती हैं आपकी 2D होती हैं. लैपटॉप की स्क्रीन इज ऑल्सो 2D. इसका मतलब क्या है? इफ दिस इज अ 3D ऑब्जेक्ट, दिस इज अ 3D ऑब्जेक्ट, और मुझे इसको बनाना है 2D ऑब्जेक्ट में. क्या मतलब है? वन डायमेंशन हैज टू बी कॉम्प्रोमाइज. अगर मैं इसको सामने से देखता हूं तो उसकी डेप्थ चली जाएगी. दिस डायमेंशन विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. आप सामने से देखते हो, यू विल नॉट गेट द आइडिया ऑफ द डेप्थ. होता है ऐसा. अगर आप यहां से देखते हो तो आपकी ये विड्थ चली जाएगी. सो वन डायमेंशन हैज टू बी कॉम्प्रोमाइज, एंड फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग दिस डायमेंशन, to compensate this compromised dimension, we have to provide some other drawings. Like हम आपको सामने से बताते हैं drawings के अंदर, we also get the drawing from the side view, we also get the from the top view, so that कि हमें सारे dimension मिल जाएं. इसीलिए जो elevation का मतलब होता है, elevation is from this part. आप सामने खड़े होते हो, कोई चीज देखते हो, that's called the elevation. Ignoring perspective व्यू. मतलब क्या है? सपोज दिस इज अ वेरी लॉन्ग बिल्डिंग लाइक दिस, और आपका यहाँ से दरवाजे लगे हुए हैं, और आप इसको रियल में देखें कैसे दिखाई देगा. इफ यू आर वॉचिंग फ्रॉम दिस साइड, सो यू विल गेट लाइक दिस. ऐसे दिखाई देता है ना, इस तरह से, लाइक पर्सपेक्टिव में दिखाई देता है. इफ इट इज अ वेरी लॉन्ग बिल्डिंग, हॉरिजॉन्टल वेरी लॉन्ग बिल्डिंग, देन इट्स लुक लाइक एज अ पर्सपेक्टिव. बट इन ड्राइंग्स वी डोंट यूज द पर्सपेक्टिव थिंग. वी measure it and we make it like this. Whenever we are making a elevation, तो हमारी ये डायमेंशन मिस हो जाती है, और जब हम टॉप व्यू बनाते हैं तो हमारी हाइट मिस हो जाती है, और हम साइड एलिवेशन बनाते हैं तो हमारी विड्थ मिस हो जाती है. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. यू कैन नॉट हैव द 3D ऑन द 2D मीडियम. I will tell you one thing. When I was doing my internship in Netherlands, my boss tell me one thing. He was saying like मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की थी ड्राइंग के ऊपर. होता है ना, जैसे आप लोग होते हैं जल्दी बना के छोड़ दिया. So my boss called me and he was saying कि we are an architect. This is like we are an architects. Our mind is this, and our physical fitness or the strength is this. We are having the mind the size of elephant, and the physical strength is like a mouse. It was his word. The person which is working on the site or the lever, having this much physical strength, and this much
मेंटल स्ट्रेंथ। तो हमें हर चीज़ बतानी होती है। वी कैन नॉट लीव एवरीथिंग ऑन द कॉमन सेंस कि आप वो तो कर ही लेगा, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज मोस्ट अनकॉमन थिंग प्रेजेंट डे इट इज़ द कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ही लोगों में नहीं है, ठीक है। प्रसाद, मैंने आपसे बताया था ना, आस्क दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन एट एंड ऑफ द वीडियो। मैं बीच में इंटरप्रेट नहीं कर सकता, है ना। नाउ फोकस ऑन दिस थिंग। वी आर हेयर टू डिस्कस द एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस, नॉट फॉर योर थिंकिंग। कैसे क्वालिफाई करना है उसका पॉइंट अलग है, बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन मी, ठीक है। सो एलिवेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को सामने से या फिर इधर से देखते हो या कहीं से भी देखते हो, दैट्स कॉल्ड द एलिवेशन। एलिवेशन के अंदर डेप्थ मिस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर मेकिंग लाइक दिस नॉर्मल डॉर, तो आपको क्या दिखाई देगा? इफ यू आर वॉचिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, यहां से खड़े हुए हैं आप एंड यू आर वॉचिंग दिस, suppose this is a 3 meter wall, so you will make a 3 meter wall. It is a 4 meter wall, or it's a 4 meter and it's a 3 meter. इसकी हाइट देख लेते हैं, 2.1 मीटर होती है डोर की। सो यू विल पुट अ लाइन एंड यू विल कम टू दिस, और ये वाली चीज जो विंडो है इट इज कम लाइक दिस। फ्रेंड, जो डायमेंशन होती है आप यहाँ बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज टू लाइक 1 मीटर और वेब से 0.5 मीटर। सो यहाँ से आप डायमेंशन मार्क करेंगे 0.5 मीटर, और यहाँ से आप जो डोर की जो साइज होगा इट इज सपोज 90 सेंटीमीटर। सो यू विल कम टू द 90 सेंटीमीटर। इस तरह से मेजर कर लेते हैं। आप इसको बोलते हैं फ्रंट एलिवेशन, दैट्स कॉल्ड द फ्रंट एलिवेशन। अगर यहाँ से देख रहे हैं तो राइट एलिवेशन, और इसके यहाँ से देखते हैं तो लेफ्ट एलिवेशन। ऑल्दो दीज आर नॉट द राइट वर्ड, फ्रंट लेफ्ट कुछ नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊंगा तो माई लेफ्ट विल बी द राइट वन, राइट। सो हम नॉर्मली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह के डायमेंशन यूज करते हैं, बट आपके लिए इतना ठीक है, ठीक है। सो आपको यहाँ से दिखाई देगा फ्रंट एलिवेशन और द डोर। विंडो आप यहाँ पर चीज जाएगी। अब जो लेबरर है, कॉन्ट्रैक्टर है, विच इज वर्किंग ऑन द साइड, ही विल गॉट टू नो कि अच्छा मुझे ये सब चीजें मिल गई हैं। तो उसको जब ये बनाना होगा 3D व्यू, तो उसको ये डायमेंशन सारी पता चल गई, तो अब उसको बना देगा, ऐसा फसाड बना देगा। उसकी फ्रंट वॉल तो कंप्लीट हो गई है, बट इसके बारे में जानकारी दी नहीं है ना इस एलिवेशन के अंदर। तो क्या करेगा, ही विल रिफर द एलिवेशन पार्ट फ्रॉम द राइट साइड। अब राइट साइड में एलिवेशन क्या आएगा? वेरी सिंपल। सपोज दिस इज 5 मीटर, तो ये जाएगा 5 मीटर और ये जाएगी 3 मीटर, एंड देयर इज नो ओपनिंग एट ऑल। तो आपको एलिवेशन इस तरह की दिखाई देगी। सो द कॉन्ट्रैक्टर विल आस्क द लेबरर टू मेक लाइक दिस। उसके बाद एक प्लान व्यू होता है, आप ऊपर से देखते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट प्लान, इट इज अ टॉप व्यू। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉप व्यू एंड द प्लान। क्या डिफरेंस है देखो। कैसे कुछ बनाया। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप जहां पर रह रहे हो, लाइक आप देखो छत पर होगी, इट इज अ टेरेस। ऊपर से देखो तो क्या दिखाई देगा आपको? लाइक सपोज यहाँ पर एक चेयर पड़ी हुई है और यहाँ पर गमले रखे हुए हैं, तो आपको सिंपल चीज दिखाई देगी। यहाँ पर टेबल और यहाँ पर सम पॉट्स। लेकिन आपको दिखाई दिया अंदर क्या है कि सर्कुलेशन किस तरह से होने वाला है? नो, क्योंकि इट इज यू आर वॉचिंग फ्रॉम द टॉप, और टॉप से आपको छत दिखाई देगी, विल नॉट गेट द पार्टीशन और द वॉल। इसीलिए प्लान वर्ड यूज किया जाता है। प्लान का मतलब क्या होता है, यू आर कटिंग द होल बिल्डिंग इन बिटवीन, दैट इज 1.5 मीटर। आप बीच में से काट देते हैं इसको। 1.5 मीटर क्यों होता है? देयर आर टू लॉजिक। फर्स्ट ऑफ ऑल द नॉर्मल हाइट ऑफ द वॉल इज 3 मीटर, तो हम सेंटर से काटते हैं। सेकेंड थिंग, सेंटर से काटने के बाद दिस इज द मैक्सिमम टाइम लाइक द बिल्डिंग विल कट। अगर आप यहाँ से काटोगे, लेट सपोज आप यू कट इट फ्रॉम हेयर, तो आपको डोर की तो डिटेल मिल जाएगी, बट यू वॉन्ट गेट कि यहाँ पर भी कुछ होने वाला है, ठीक है। सो वी नॉर्मली कट इट बिटवीन 1.5 मीटर। अब आप इसको काट देते हैं तो क्या दिखाई देगा आपको? सो यू विल लुक लाइक दिस, इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से एंट्री होगी,
लाइक यहाँ से डोर खुलेगा और यहाँ से विंडो है और यहाँ पर जो सोफा सामान में भी जो भी वॉट एवर जो भी रूम में है वो आपको दिख जाएंगे। क्लियर है? टॉप व्यू और प्लान व्यू में डिफरेंस क्या है? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्किटेक्ट समझाने के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ द ड्राइंग्स, क्योंकि पता कैसे चलेगा? इट इज एवरीथिंग, यू आर बीइंग एन आर्किटेक्ट, इट इज एवरीथिंग इन योर माइंड, बट द पर्सन विच इज वर्किंग ऑन द साइट और एज अ क्लाइंट, हाउ द क्लाइंट और द वर्कर और द लेबरर विल नो कि मुझे काम कैसा करना है। आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप ड्राइंग भेजते हो, आपको बार बार फोन करके ना पूछे कि सर डोर का साइज क्या देना है, ये क्या देना है, जो प्रोवाइड द ड्राइंग्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें एलिवेशन से रिलेटेड, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको एलिवेशन बताना है। एलिवेशन का मतलब क्या है? यू कैन वॉच फ्रॉम दिस डायरेक्शन और एट द सेम टाइम यू कैन वॉच फ्रॉम दिस डायरेक्शन। आपको देखना है कि किस तरह से आपको सही आएगा। जब भी जिस डायरेक्शन हम लोग देखते हैं उसकी जो पैरेलल जो डायमेंशन होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मतलब क्या है? इफ यू आर वॉचिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, आपकी पैरेलल ये लाइन है, ये डायमेंशन होगी ना, ये वाली डायमेंशन है, नॉट लाइक दिस, और आई शुड मेक ये डायमेंशन आपकी जो है ये मिस हो जाएगी। अगर आप सामने से देखेंगे तो यू वॉन्ट गेट दिस पार्ट, यू वॉन्ट गेट दिस पार्ट, यू वॉन्ट गेट दिस पार्ट। पता कैसे चलेगा कौन है? आप इस चीज को ऐसे समझो, आप यहाँ पर खड़े हुए हो, आपके मम्मी और पापा लाइक योर पेरेंट्स आर दे आर कमिंग ऑन दिस डायरेक्शन। सपोज आपके मदर यहाँ पर है, आपके फादर यहाँ पर है, इट्स अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। आपको सामने देखकर पता नहीं चलेगा कि कौन सा आपके नियर है और कौन सा आपसे दूर है। लाइक एज अ मैराथन, जब मैराथन होती है, रेस होती है, तो हम कैमरा यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, कैमरा यहाँ पर रखते हैं सो दैट वी कैन गेट द डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन। अगर सामने से देखेंगे तो वी डोंट गेट द आइडिया। द सेम थिंग गोज फॉर इट। आपकी एक डायमेंशन कॉम्प्रोमाइज होती है। नाउ यू सी, अभी मैंने क्वेश्चन का जवाब मांगा नहीं है, डोंट वरी, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं आपसे, अभी समझो, ये सॉल्व करने का ऑप्शन नहीं है, अभी आप थोड़ा देखो। सो वेन एवर यू आर वॉचिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, आपको क्या दिखाई देगा? यू विल गेट दिस पार्ट, आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, सिंपल। इसकी डेप्थ दिखाई देगी? नो, यू विल नॉट गेट द डेप्थ। फिर आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा जो आपके सामने है, बिल्कुल एट अ परपेंडिकुलर आपको चीज दिखाई देगी। एट द सेम टाइम यू विल गेट टू दिस, और आपको यहाँ पर ये एक पार्ट दिखाई देगा। तो यहाँ से मिलाकर देख लो कैसा आएगा, कुछ इस तरह का। उसके बाद ये वाला पार्ट दिखाई देगा, दिस पार्ट एंड कुछ इस तरह का, और ये वाला इस तरह का इस एलिवेशन पर बनेगा। एंड व्हाट अबाउट द राइट ऑप्शन? अगर इसका मतलब क्या है, नो व्यू इज लाइक दिस, व्हाट डज इट मीनिंग? कि जो एग्जामिनर है उसने पेपर इस तरह सेट किया है, लाइक यू वॉचिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो आप देखो ये वाला फेस आपको दिखाई देगा, फिर आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, और आपको ये वाला। डेप्थ विल नॉट बी शोन इन योर एलिवेशन ड्राइंग, पता नहीं चलेगा ना कि इसकी डेप्थ कितनी है। तो दिस पार्ट इज दिस पार्ट इज दिस पार्ट इज दिस, एंड दिस इज दिस, और ये वाला जो मेन पार्ट है वो यहाँ पर आ गया। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं? बहुत सिंपल है। वी ऑलवेज हैव द प्रॉब्लम व्हेन वी आर हैविंग द ऑप्शंस। जैसे मेरे पास एक एंड्रॉयड है, मेरे पास एक आईफोन है, तो तब प्रॉब्लम आती है कौन से फोन से मुझे बात करनी है। या फिर आई हैव मैंगो एंड एप्पल इन माई हैंड, सो आई विल हैव द प्रॉब्लम। या एसपीएल लेना है या सेप्ट लेना है, दिस इज द प्रॉब्लम। सेम थिंग गोज फॉर योर एमसीक्यूज। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ज्यादा है, आंसर कम है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। सो योर टारगेट शुड बी टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन फर्स्ट। जो भी रॉन्ग ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो। वेरी सिंपल। आपको ये सब चीजें पता है कि यहाँ पर दिस ब्लॉक विल बी देयर, आपको ये ब्लॉक दिखाई देगा, यहाँ पर लाइन नहीं है ये वाली ना, तो हम इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन ए कांट बी द राइट ऑप्शन। फिर हमें देखते हैं कि जो ये वाली जो लाइन है और जो ये लाइन है डिफरेंट है, छोटी बड़ी है,
बट यहाँ पर सेम लाइन दी हुई है, इसका मतलब क्या होगा, दिस कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू दिस थिंग, यहाँ पर अब जब आपको दो पार्ट एलिमिनेट हो जाए, व्हेन यू लेफ्ट विद ओनली टू ऑप्शंस, देन वर्कआउट फॉर दी टू ऑप्शंस, इन दोनों में चेक करो कि डिफरेंस कहाँ पर है। इसको आप चेक करो को फायदा नहीं है ना, बिकॉज इट इज कॉमन इन थिंग। सो द प्रॉब्लम, द डिफरेंस लाइज हेयर, यहाँ पर लाइन है और यहाँ पर नहीं है। नाउ गो टू द क्वेश्चन एंड चेक इट, यहाँ पर तो लाइन है नहीं और क्या है। इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है यहाँ तक? 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक पर जाएंगे। कहीं प्रॉब्लम है किसी बच्चे को इस चीज़ों के अंदर, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि बाकी लोगों को आता है एंड दे स्टार्ट गिविंग द राइट ऑप्शंस। आपका कॉम्पिटिशन आज यहाँ है ही नहीं, आपको कॉम्पिटिशन होगा जिस दिन एग्जाम होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग क्लासेस में बहुत लोग शो ऑफ करते हैं कि मुझे इतनी नॉलेज है, बट इन द रियल एग्जामिनेशन दे फेल। सो मैंने आपको डाला था कि दिस इज नॉट एन प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर नॉलेज और टू प्रूव समवन। आप यहाँ पर अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आए हैं। इफ यू फीलिंग दैट यू आर लैकिंग समथिंग, आपको चीज समझ में नहीं आई है, स्पीक अप। आप मुझे बताओगे तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, आई कंसिडर कि सब लोगों को यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कौन जल्दी सॉल्व करता है। रैंडमली मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा अपने क्लास के थ्रू और देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर EL006। टेक योर टाइम, 30 सेकंड का टाइम दूंगा आपको, आराम से सोचो, जल्दबाजी नहीं करनी। Sir, D. Who said D? This is wrong. C will be the right options. Sir, option C. C is the right option. क्यों? क्योंकि आपको यहां से देखा गया है ये। सो आपको ये लाइन दिखाई देगी, आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, इट इज देयर, इट इज ऑल्सो देयर, दिस एंड दिस टू पार्ट, और ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, जिस बच्चे ने डी बोला था आप गलत क्यों हैं? क्योंकि आपको ये लाइन भी दिखाई देगी ना। अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको सही ऑप्शन कोई भी दिखाई नहीं देगा इसमें। सो जिन बच्चों ने दिया है उनकी तैयारी अच्छी है। चलो, क्वेश्चन नंबर EL009। Option D. प्लीज ट्राई टू राइट इन चैट बॉक्स। Sir, D. ऑप्शन, Sir, D. अरे डी Option D, मुझे sir. पता नहीं चलेगा मेरे भाई, आप उसको पता नहीं, डी आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। सो इफ यू वांट टू गिव द राइट ऑप्शन, ट्राई टू गिव इन द चैट बॉक्स, है वो मेरे लिए इजी है समझना, बात करना। बी और डी में प्रॉब्लम है। आर्यन इज सेइंग बी, मेरे थोड़ा इजी समझना है ना, आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। आर्यन बी समझ में आया क्यों नहीं होगा? चलो चेक करते हैं इसको बहुत सिंपल तरीके से। इसका मतलब कि आप यहाँ से देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाई देगा और आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, है ना, सब कुछ छिप जाएगा। मतलब इट विल लुक लाइक दिस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से तो नहीं लिया गया है, एग्जामिनर हैज आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट। नाउ वाचिंग दिस, सो आपको ये इस तरह का पार्ट दिखाई देगा। सी, यस इट इज देयर। आपको दो गोले वाले पार्ट दिखाई देंगे, द स्फेरिकल वन, आपको दो यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आपको ये वाला पार्ट आएगा। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है कि ये सी है या डी है ना, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है कि ये उठा हुआ है, दिस पार्ट ये ऊपर उठा हुआ है या नीचे है। तो अगर आप इसको जूम इन करेंगे, थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि इसको अगर हम लोग डायमेंशन बनाते हैं, लाइक इसका 3D बनाएंगे, लाइक इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, है ना, इस तरीके से। तो आपको ये वाला लाइन जो होगी ये इसी लाइन को मिलती दिखाई दे रही है। क्या मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा उठा हुआ नहीं है, इट इज, ठीक है। संयुक्ता समझ में आया कि सी क्यों नहीं होगा? ये जो पार्ट है ये ऊपर उठा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल मिला हुआ है, इस वाले सरफेस से मिला हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। बट आई अप्रिशिएटेड कि आपने इतना सोचा।
चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देन कम टू द एलिवेशन टॉप व्यू. यस, इट्स क्वाइट इजी. ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग ए, है ना, वेरी इजी. इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं. चलो इसका बताओ. बी और डी में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को. बी एंड डी, विच इज राइट वन? ए है या डी है? टाइम लो, सोचो, यूज करो माइंड को. आपने थ्योरी ऑफ डिजाइन पढ़ा होगा, प्रोपोर्शन स्केल का नाम सुना होगा. बी एंड डी, दिस आर टू वर्ड्स. अनुषा, दोनों में से एक ही सही ऑप्शन है. डी. राइट, डी इज द राइट ऑप्शन. डी. कैसे? हाँ, डी क्यों है? आप थोड़ा सा नोटिस करो. क्या ये वाला जो पार्ट है, आपकी मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है? आपको आई थिंक ए और सी में तो कंफ्यूजन नहीं है ना, वी कैन इजिली एलिमिनेट. नाउ कम टू दी ओनली बी एंड डी. ओनली टू ऑप्शंस आर देयर. यहाँ पर बहुत छोटी सी लाइन है और यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज. अब लाकर देखो आप, डू वन थिंग. कितना है प्रोपोर्शन? अगर हम इसको 1 लेते हैं तो इट विल बी लाइक 2 और 3. यहाँ पर कितना होगा? 3 पार्ट में डिवाइड होगा ना, 1 1 3. सो यू सी, दिस इज 1, दिस इज 1. सो आपका स्केल के हिसाब से क्या बन रहा है? द डी विल बी द राइट ऑप्शन. यहाँ पर आप देखो, अगर इसको 1 लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6. क्या ये 7 टाइम बड़ा है ये वाला पार्ट? नहीं है ना. सो दिस इज हाउ दे विल चेक योर प्रोपोर्शन और द स्केल. स्केल और प्रोपोर्शन का डिफरेंस पता होगा आपको क्या होता है? नहीं पता है तो वीडियो में देख लेना, क्योंकि थ्योरी ऑफ डिजाइन क्लास में लेने वाला हूँ नहीं. तो स्केल प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या होता है? अगर आप एक नैनो गाड़ी को फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हो, दैट्स कॉल्ड द स्केल. कि नैनो छोटी है इन कंपैरिजन ऑफ फॉर्च्यूनर, होता है, दैट्स कम द स्केल. या फिर मैं ऐसा बात करूं, दिस इज माई 1 फोन एंड दिस इज माई 2nd फोन, और जो ब्लू वाला फोन है थोड़ा सा बड़ा है. सो व्हेन आई एम कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट, दैट्स कॉल्ड द स्केल. जैसे आप एटलस यूज करते हो, ग्लोब यूज करते हो, तो वहां पर स्केल आता है कि जो 1 इन द मैप, द 1 मीटर इज 1 किलोमीटर, ऐसा आता है स्केल. प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है? नैनो गाड़ी का जो व्हील है वो छोटा है, बड़ा है, दैट्स कॉल्ड द प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शंस में क्या होता है? वी आर कंपेयरिंग द 2 डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ सेम ऑब्जेक्ट. हमारा चेहरा, मेरे कान बड़े हैं, तो आप बताएंगे कि सर आपके जो कान का जो प्रोपोर्शन है आपके चेहरे के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है. द प्रोपोर्शन ऑफ योर ईयर इज क्वाइट बिगर इन कंपैरिजन ऑफ योर फेस. समझ में आया? और अगर आप इसको ऐसा समझो कि मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है एंड सपोज आपकी हाइट 6 फीट है, तो देन वी विल कॉल्ड एज अ स्केल कि आप जो है मुझसे बड़े हैं. प्रोपोर्शंस में क्या होगा कि आपकी आईज, फेस, हाथ क्या होता है. क्लियर? बहुत सिंपल होता है. थ्योरी ऑफ डिजाइन को ज्यादा कुछ करना होता नहीं है ना. चलो, सो आपको इसी समझ में आई क्वेश्चन एलिवेशन से रिलेटेड. अब प्लान भी बहुत सिंपल है. I am speaking in English, है ना ओमा महेश. सो प्लीज मेंटेन इट. अगर आप मेरा कॉन्वर्सेशन देखेंगे तो मोस्टली आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, लाइक 70% इंग्लिश, ऑल्दो आई विल ट्राई कि एवरीथिंग विल बी देयर फॉर यू. सेम क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन को पकड़ते हैं इस बार हम. अब हमें क्या करना है? आपका प्लान बताना है. प्लान का मतलब क्या है? आप उसको ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से क्या दिखाई देगा? जैसा आपने साइड देखा था ऊपर से आ जाएगा. सो आपकी जो ये होगी हाइट, इट विल बी कॉम्प्रोमाइज. तो वेरी सिंपल, आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, आपको ये वाला फेस, देन दिस फेस, एंड देन दिस फेस, एंड दिस फेस. सो इसी यहाँ पर चलो मान लेते हैं ये वाला पार्ट सही आया. फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जो बड़े वाला है इसे मिला हुआ है, लाइक इट इज, बट अगेन इट इज नॉट ऑन दिस वॉल, तो ये पार्ट एलिमिनेट हो गया. यहाँ पर हम देखते हैं. सो ऑप्शन ए गॉन. ऑप्शन बी के अंदर बात करें, दिस फेस इज क्वाइट स्मॉलर इन कंपैरिजन ऑफ लाइक दिस, और उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है. सो इट कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन. नाउ यू लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर सी और डी. नाउ
जस्ट चेक इट। ये वाला पार्ट यहाँ पर है और यहाँ पर दो डिफरेंस है, यू चेक इट। यहाँ पर तो खाली है ना, सो द राइट ऑप्शन विल बी द डी ओनली। समझ में आया कैसे चेक कर रहे हैं? अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका बताओ PL004 का। C. Yes, sir. C. सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑल द स्टूडेंट्स आर सेइंग द सी इज द राइट ऑप्शन। यस, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। आपका ये वाला पार्ट है यहाँ पर आया है, लाइक आप देख सकते हो कौन सा दिखाई देगा आपको। यू विल सी ओनली 3 फेस इन द स्मॉलर वन एंड इट विल कम टू द पैरेलल। सो 1 2 3 देन दिस फेस विल बी देयर, दिस इज थिंग, और लास्ट में आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा। चलो इसका बताओ PL008। Sir, D. Sir, D। यार उसको चैट में लिखने की कोशिश करो, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप कौन बोल रहे हैं ना। मुझे आपका नाम दिख जाता है व्हेन यू आर राइटिंग इन द चैट बॉक्स, सो प्लीज ट्राई टू राइट इन चैट बॉक्स। यस, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, इट्स क्वाइट इजी सब लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12। ए यस, देखो क्योंकि जो ये वाला पार्ट है, दिस ब्लॉक इज क्वाइट 50% ऑफ दिस, लाइक दे हैव द सेम साइज। सो यहाँ पर सेम होगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं होगा। उसके बाद ये वाला क्यों एलिमिनेट हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पर गैप है, देयर इज अ गैप एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एज, सो इट वोंट बी द राइट ऑप्शन। नाउ यू लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन ए एंड बी, सो यू कम टू दिस। यहाँ पर ये लाइन है और यहाँ पर लाइन, यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर लाइन नहीं है। यू विल सी द राइट क्वेश्चन, यहाँ पर देयर इज नो लाइन, सो यू कम टू द ऑप्शन नंबर ए। ये पर ठीक हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर दी प्लान। इसका बताओ। ऐश्वर्या, विश्वजीत, भाग्यश्री, श्रावणिद्या, पर्थ, उमा महेश, देविका, आर्या, संस्कृति, भक्ति, दिव्या, शिवम, रावत। ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? आई थिंक आप लोगों ने सब ने ये दिया है। और जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज म्यूट योर सेल्फ यार, जिन लोगों का भी खुला हुआ है। जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, इट इज योर लॉस। गलत होगा मैक्सिमम, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता चल जाएगा। आई विल गेट टू नो दैट यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम। ठीक है, चलो नाउ कम टू द मिरर इमेज। क्या होता है मिरर में, इसके थोड़ा सा देखना कि लाइक लाइन फिट थोड़ी कम है, सो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको। मिरर क्वेश्चंस के अंदर दो पार्ट होते हैं। तो मिरर होता है, एक आता है आपका वाटर इमेज। वाटर इमेज कुछ नहीं होता है, अगर आप इसको वर्टिकली देखेंगे तो ये वाटर इमेज बन जाएगी, और अगर इस तरह देखते हैं उसको बोलते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज का सिंपल है, दिस इज मी और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, दिस इज माई लेफ्ट हैंड, दिस इज माई राइट हैंड। और अगर आपका मिरर के अंदर आप देखेंगे, सो मिरर का वॉट एवर in the mirror it will be opposite, like if it is my left hand in the real, so the right hand will be in the image, mirror image में right hand दिखाई देगा आपको। but remember this part, there will be no addition, there will be no subtraction from any object। ऐसा नहीं है कि if I am having my pen in my right hand, so it will be in my image, like in the mirror image I will be have my pen on the left hand, but there will be a pen। ऐसा नहीं होगा पेन की जगह मेरी पेंसिल हो जाएगी या फिर कुछ और हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस टाइप द क्वेश्चंस, ट्राई टू डू वन थिंग, यू फर्स्ट चेक इट कि कुछ अलग तो नहीं आया है। सो आप इसको बनाओ लाइक दिस।
क्योंकि इनकी मिरर में सेम बनेगी और आपको ये वाला पार्ट इस तरीके से आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब आप यहाँ पर देखो ये नीचे क्यों चला गया, बिकॉज इन्वर्टेड स्पाइन बनेगा, तो ये अलग हो गया। ये वाला पार्ट भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका यही होता है। यू विल चेक इट। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, यू आर वॉचिंग दिस, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लाइन इज मिसिंग दिस पार्ट। इन मिरर इमेज देयर विल बी नो एडिशन, देयर विल बी नो सब्सट्रैक्शन, सिर्फ इट विल बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इन द सेंस ऑफ कि लेफ्ट राइट वाला, तो आप इसको हटा देना। नाउ यू विल सी यहाँ पर क्या होगा, ये लाइन मिसिंग हो गई है, सो इट वॉन्ट बी द राइट ऑप्शन। नाउ यू लेफ्ट विद ऑप्शन बी एंड डी, यू चेक इट बी और डी के अंदर दिस लाइन इज एक्स्ट्रा, देयर इज नो लाइन, एंड यू चेक दिस क्वेश्चन कि यहाँ पर लाइन है ही नहीं, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान होता है। इट इज़ वेरी इजी टू सोल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। इट्स लाइक अ डांसिंग, इट्स लाइक अ स्विमिंग, ड्राइविंग। एक बार आपको आ गई टेक्निक, आप सोल्व कर लेंगे। इट इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल टू स्कोर। फॉर एग्जाम्पल, जीके क्वेश्चन आप भूल सकते हैं। इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज सुनामी, सुनामी इज इंट्रोड्यूस बाय वॉर्म, क्या हो सकता है, तो उसका होता है सिस्मिक एक्टिविटी। इफ यू नो दिस ऑप्शन देन यू विल राइट। नहीं पढ़ा है आपको, सो यू कांट सोल्व दिस क्वेश्चन, बट इफ यू नो द टेक्निक टू सोल्व दिस एप्टीट्यूड पार्ट देन इट हार्डली मैटर फॉर द क्वेश्चन। आपको आती है, आप चला लोगे। ठीक है, in those students which are focusing for the JEE, it is very important for you कि aptitude part has to very strong, it is predictable, they will give you। हाँ, मैंने बताया ना विश्वजीत, थोड़ा लाइन विड्थ की प्रॉब्लम है, एंड इफ स्पेसिफिकली इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम योर सेल फोन। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर MI012। बी सर। अरे मिरर लाइन यार यही होगी, ये मान के चलो ना लाइन, दिस इज द मिरर लाइन। सेम क्वेश्चन तो है, तो आप पढ़ो ना यहाँ पर मिरर इमेज। ठीक है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलो, आई थिंक ये सोल्व हो गया अपना। हिडन फिगर्स में क्या होता है, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, हिडन फिगर्स। हिडन इमेजेस के बारे में बात करें, इट इज़ वेरी सिंपल। इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपको, वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर इज हिडन। यहाँ पर एक इमेज दी गई है एंड देयर इज समथिंग इज हिडन इन द प्रॉब्लम फिगर इन द सेम साइज एंड डायरेक्शन। रिमेंबर टू पार्ट, इट हैज टू बी द सेम साइज एंड इट हैज टू बी द सेम डायमेंशन, एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। इसका सोल्व करने का तरीका क्या है, व्हेन यू आर सेइंग दैट ऑप्शन ए, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग, ऑल द स्टूडेंट्स आर सेइंग इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। सो बिफोर क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन प्लीज ट्राई टू कंफर्म इट। जैसे आप देखोगे, अब आपने ये बोला है कि इट हैज टू द सेम साइज एंड इट हैज टू बी द सेम डायरेक्शन, सो आप यहाँ देखेंगे इट इज लाइक दिस। सो एक कर्व लीनियर है यहाँ पर, यस कर्व लीनियर है। अब एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर आता है, देन इट इज हैविंग द लाइक कट आउट, यस इट इज ट्रू। फिर आप सीधी लाइन आती है, यस इट इज ट्रू, और ये लाइन आती है, इट इज ट्रू। उसके बाद इट्स बिकम ए ट्रायंगुलर पार्ट, सो इट विल बिकम द राइट ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सी डी नहीं है, क्यों, दे आर नॉट ऑन द सेम डायरेक्शन और दे प्रोबेबली दे आर नॉट अवेलेबल इन दिस इमेज। चलो क्वेश्चन नंबर 4, HF004। Someone is saying C,
तो चेक करो सी क्यों नहीं होगा, उसी फॉर्मूला के था साथ। इफ यू आर सेइंग द ऑप्शन नंबर, यस इट्स डी। अरे यार चैट में लिखो, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है ना कौन बोल रहा है, और सब बच्चे बोलना स्टार्ट कर देंगे तो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, राइट। सो इट इज बेटर टू राइट इन चैट बॉक्स। आपके राइट में आ रहा होगा बटन आने वाला, देखो इट्स अ डी, क्लियर। तो आप यहाँ पर देखो इट्स अ लाइन, ठीक है, ये लाइन गई है, फिर ये कर्वीलिनियर पार्ट है, इट इज अ कर्वीलिनियर एज वेल दिस पार्ट, और अगेन सेकंड कर्वीलिनियर एंड अगेन कर्व एंड दिस, सो अगेन कर्व एंड दिस स्ट्रेट लाइन। सो कंफर्म कर लेना एग्जाम में क्लिक करने से पहले। हिडन इमेज को छोड़ देते हैं। नाउ कम टू दी सरफेस काउंटिंग। सरफेस काउंटिंग में क्या होता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द सरफेसेस ऑन द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो इन द प्रॉब्लम फिगर। तो आपको बताना है कि कितने सरफेस हैं। सेम क्वेश्चन, इसका हमने प्लान, एलिवेशन, सरफेस काउंटिंग सेम रखी है। डी, टेक योर टाइम। ए सी ए सी ए सी मतलब किसी को 70 90, किसी को डी भी लग रहा है। चलो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका ढूंढ लेते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा आराम कि क्या है, आपको पूरे सरफेस दिखाना, काउंट करना है कि पीछे भी ऐसा होगा। सो यू हैव टू यूज योर माइंड, डोंट वरी, आई विल शो यू। आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, दिस हाउ टू सॉल्व दिस टाइप द क्वेश्चंस। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, जिस तरह की इमेज आती है। फॉर अवर स्टूडेंट्स लाइक दोज हैव जॉइंड अवर क्रैश कोर्स, सो वी आर प्रोवाइडिंग 3 मॉडल एज वेल। जहाँ प्रॉब्लम रहती है आप चेक करके देख सकते हो। सो आप कैसा करोगे, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेसेस। काउंट करने का तरीका क्या है, ऑलवेज काउंट फ्रॉम अ सिंगल डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप पहले काउंट करो, यहाँ पर एक सरफेस ये गई, सेकेंड 2 3 4, यही तो है एक साइड से। फिर आप इस डायरेक्शन में चेक करो, 5 6 7 8 9, फिर आप ऊपर से काउंट करो 10 11 12 13 14, और तो नहीं बचा कुछ, नहीं 14 हो गया। फिर एक नीचे की तरफ आएगा 15 16 सो 16 हमने क्या चेक किया, 14 टोटल हो गए, 15 16 17 15 नीचे 16 17, और पीछे से क्या आएगा आपका 18। भक्ति राजगुरु 17 कितने हो गए, मैंने गलत कर दिया है कुछ, आई थिंक समझ गए ना आप ये 17 कैसा आएगा ना। एक्चुअली यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर खोलते ही स्टाइलस काम नहीं कर रहा है, आपको शायद लग भी गया होगा कि ये लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है। सो इन चीज़ों के लिए इसको बंद कर देते हैं सॉफ्टवेयर को, लेकिन आप समझ सकते हैं लाइक 1 2 3, और आप इसको रोटेट करके देखना चाहें तो आप इसके पीछे से भी रोटेट कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर लाइन नहीं करी है, नॉर्मली जो आपको आएगा तो यू हैव टू कंसीडर कि आपको बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि
इफ समथिंग इज नॉट शोन यू सो यू विल कंसिडर इट एज अ सिंगल प्लेन। यहाँ आप इसको एक प्लेन लेकर चलेंगे, इट्स अ नॉर्मल वन प्लेन। पीछे जाकर चेक कर सकते हैं, उसके नीचे भी बॉक्स होगा ऑफ कोर्स, और ऊपर से तो है ही। टेक्निक समझ में आई? एक्चुअली हमारी फाइल बहुत हैवी हो गई है रिकॉर्डिंग की, इसलिए उसने स्लो कर दिया सिस्टम पूरा। ठीक है, कोई वैसा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका काउंट करके देखें। चलो लेट्स चेक इट, कितने सरफेस होंगे। इट इज़ वेरी इजी। बारह और 13 में डिफरेंस है। सानिया चेक करो, कहीं और सभी होंगे। ऊपर नहीं चेक करो, 11 कैसे आ रहे हैं आपके। यस, 13 विल बी द राइट ऑप्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, अच्छा हमारा टाइम थोड़ा कम है, सो लास्ट टॉपिक फॉर टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द फोल्डिंग एंड फोल्डिंग। इन क्वेश्चन थोड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, क्या होते हैं ये। ठीक है, वो कर लेना, आपको टेक्निक समझ में आनी चाहिए। दिस इज नॉट द थिंग कि आपको कहाँ पर है। 13 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नाटा में खासकर, इस बार शायद नहीं पूछे बट दे कैन आस्क यू। विच वन ऑफ द आंसर फिगर शोज द करेक्ट व्यू ऑफ 3D प्रॉब्लम आफ्टर द प्रॉब्लम फिगर इज ओपनड अप। आपने क्या करा है, हैव यू लाइक यू मस्ट हैव बाय समथिंग फ्रॉम Amazon और फ्लिपकार्ट और सम अदर ऑनलाइन वेबसाइट, दे विल गिव द बॉक्स। बॉक्स अच्छा लगता है बट आप उसको स्टोर कर लेते हैं, बट आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज इट कि काफ़ी जगह घेर रहा है। सो क्या करते हैं, उसको अनफोल्ड कर देते हैं। नॉर्मल बॉक्स होता है। ऐसे ही इस तरह के बॉक्स बनाए जाते हैं टू चेक योर क्रिटिकल थिंकिंग और एप्टीट्यूड, आप कैसा सोच पा रहे हो। इन क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे सोल्व करना है, आप उसे समझो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि कितने टोटल सरफेस लाइन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये तो क्लियर है कि जो ये बॉक्स है किसी एक्सेस में खोला गया है, सो दिस बॉक्स इज ओपन ऑन दिस एक्सेस, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ से ऐसा खुला और ये वाला इधर, लो ऑन दिस लाइन दिस पार्ट इज ओपन लाइक दिस, और जो पीछे वाला पार्ट था वो इस तरह से ओपन कर दिया गया है। क्लियर? सो इट इज ओपनिंग लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, चेक इट कि कितने टोटल एजेस हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 1 + 9 आपको टोटल 10 मिलेंगे। क्लियर है? अब आंखें बंद करके पहले ये सारा चेक कर लो कितने एजेस में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 इज देयर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 है। 11 कहीं भी सही ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज इन द प्रॉब्लम फिगर इट इज शोन दैट 10 द टोटल नंबर ऑफ द लाइन विल बी फोल्डिंग विल बी द 10। क्लियर? सो ए को एलिमिनेट कर दो। कम टू द D1, तो डी में चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 कांट बी द राइट ऑप्शन। बिना कुछ चेक करे इसको आप एलिमिनेट कर दो। नाउ ऑप्शन बी और सी रह जाते हैं। क्या मतलब है इसका, आइदर राइट ऑप्शन विल बी फ्रॉम द बी और द सी। इनको चेक करने का सिंपल है। अब यहाँ पर आप स्केल प्रोपोर्शन का थोड़ा दिमाग लगाओ। कैसे? देखो कि यहाँ पर ओपन किया गया इस एजिस पर, तो ये एज तो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब आपको देखना है कि 1 एज इज एंड सेकेंड ये है, तो दोनों थोड़ी सी कहीं ना कहीं ये छोटी है, ये थोड़ी बड़ी आएगी, क्योंकि ये एक डायगोनल है। ओके, इट इज ट्रू। फिर आप देखेंगे थोड़ी सी और आ गई है, ये भी आ गया। फिर आप देखेंगे ये स्मॉल आएगी, इसी के बराबर आएगी, दिस लाइन हैज टू बी द लाइक वन, सो इस लाइन के बराबर ये भी आ गया। फिर आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, द राइट वन। नाउ कम बैक टू दिस पार्ट।
अब ये वाला पार्ट देखेंगे, तो जो ये वाला पार्ट है ये सिमिलर होना चाहिए, फिर थोड़ा सा बड़ा आएगा, यस, उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा और ये वाला पार्ट। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ज़्यादा जरूरी ये है कि सी या डी ऑप्शन गलत क्यों है। सो ए और सी बिकॉज दे आर हैविंग मोर देन 10 एजेस, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट। और ऑप्शन बी और डी के बारे में बात करें तो डी की हमें प्रॉब्लम कहाँ पर है, डी इज हैविंग द प्रॉब्लम है। देखो ये छोटा पार्ट आया, यस दिस वन, फिर जो ये वाला पार्ट है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, फिर जो ये वाला पार्ट है इट इज, और बी और सी की बात कर रहे थे ना हम लोग, डी तो एलिमिनेट हो ही गया। सो ये आप देखो, अगर आप उसको सी लेकर चलते हैं कि वाई द सी ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज इट इज स्मॉल वन, इट इज इतना बड़ा साइन है, लाइक ये इतना बड़ा बना दिया उन्होंने, तो आप सीधा इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस facing problem in this type of the questions, but although it is one of the simplest questions I have ever seen in the architecture field. समझ में आया किसी को, कंफ्यूजन है? ओके, प्रथमेश और एक बच्चे को प्रॉब्लम है, मोमिन, उनको प्रॉब्लम। चलो मैं अभी टाइम है तो बता देता हूँ। दोबारा क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आया अनफोल्डिंग का मतलब क्या है, व्हाई दे आर गिविंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आप कोई बॉक्स देखा होगा आपने, उसको आज खोलना नहीं होता है तो मिल जाएगा आपको, मंगाना मत कि सर ने बोला है चेक करने के लिए। सो इफ यू फाइंड एनी एक बॉक्स, उसको देखना। इसको हम, आपका जो बॉक्स आएगा मोस्ट प्रोबेबली इस तरह इसका बॉक्स होगा। जब उसको अनफोल्ड करेंगे तो आपको 1 2 3 4 एजेस देखने को मिलेंगी। सेम थिंग गोज फॉर इट। आपके पास ऐसा बॉक्स आया है, सो फर्स्ट ऑफ व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट स्टेप शुड बी आप चेक करो कि कौन से एजेस पे बॉक्स खुला है। सो यू नो कि जो ये वाला एजेस पर खुला है, और ये एजेस कौन सी है, इसके पीछे चले जाएगी ना, ये वाली एजेस जाएगी। तो ये जो एज है इसके ऊपर हमारा बॉक्स ओपन हुआ। फर्स्ट स्टेप टू चेक ऑन द विच एजेस द बॉक्स हैज बीन ओपन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज नाउ यू चेक द टोटल नंबर ऑफ एजेस। यहाँ पर क्या है, ये एक मान लेते हैं क्योंकि यहाँ से खुला हुआ है, लेट्स कंसिडर 1, और उसको देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 1 + 9, तो टोटल एजेस कितने हैं, 10 है। हम उसको अलग से भी काउंट कर सकते हैं, 1 + 9, क्लियर। थर्ड स्टेप योर शुड बी यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ द एजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आ ही नहीं सकता बिकॉज इन द प्रॉब्लम फिगर टोटल नंबर ऑफ द एजेस इज 10, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट ऑप्शन नंबर ए। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग वन एक्स्ट्रा एज। ऑप्शन डी को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो कुछ ज्यादा ही हो गया, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं एक बेसिक फॉर्मूले से, क्लियर। नाउ वी लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर बी और सी ओनली। तो ए तो चला गया और ये डी भी चला गया। प्रवीण, आपने शायद पढ़ा नहीं है क्या? मैंने आपको मैसेज भेजा था आपके जो ज्वाइन करने से पहले। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट व्हाई यू फेल इन योर एग्जाम, यू डोंट कंसिडर कि आपने क्या चीज पढ़नी है क्या नहीं है। वी नेवर मेंशन इन द रिडल्स और 30 सेकंड इमेजेस व्हेन यू जॉइन दिस क्वेश्चन, व्हेन यू जॉइन दिस बैच, क्लियर। आप उसको चेक करो वहां पर क्या है। इट इज नॉट फॉर योर फरमाइश कि आप मुझे बताएंगे काम करने के लिए, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो हम लोगों ने पहले प्लान शेड्यूल किया है, हम उसी को काम करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। सो नाउ कम टू द बी एंड सी ऑप्शन। Now you left with option B or C. Now you to check it. Like यहाँ पर option 1 यहाँ पर आता है। अब आपको क्या करना है, you have to use your proportion or the scale thing. अब आपको पता है कि suppose this is the big one part, तो यहाँ पर open हुआ है। Now you will see this edges. So this edge is this. Now you will see like this. ये थोड़ा सा है, जो ये साइज लगभग इतना साइज रहा होगा इसका भी। So you will getting the right option. फिर आपको छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, देन इट विल कम टू लाइक दिस, और फिर एक बड़ा पार्ट है ये आपको ओपन हो जाएगा। सेम थिंग्स गोज फॉर दिस पार्ट, यहाँ पर दिस, और फिर 2 थिंग्स आर देयर एंड दिस पार्ट। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। अंडरस्टैंड किसको प्रॉब्लम थी? यहाँ पर 2 बच्चों की प्रॉब्लम थी।
मोमिन और किसको प्रॉब्लम थी ना, कोई बात नहीं, भी क्वेश्चन सॉल्व और भी करेंगे, डोंट वरी। आर्किटेक्चर इतना डिफिकल्ट है ही नहीं, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आप FE004 ट्राई टू सॉल्व इट। टेक योर टाइम, देयर इज नो हरी। BADA चेक करो बच्चों कहाँ पर गलती हो रही है। ABDC बोल दिया। मृणाल देशमुख, मुझे पता नहीं है रेबिका, आई डोंट हैव द राइट ऑप्शन। सर लिखे हुए हैं क्या इसमें? नो, चेक करना पड़ेगा। दिस इज लाइक जो रेगुलर क्लासेस होते हैं उसके असाइनमेंट्स हैं ये। सीक्वेंस टाइप क्वेश्चंस हम इसको के बाद में देखेंगे। लाइक वॉट एवर वी हैव डिसाइडेड, लाइक दी आपको 6 क्लास का टाइम शेड्यूल दिया हुआ है, सो हम उसी पे स्टिक करेंगे, क्योंकि थोड़ा भी चेंज करेंगे तो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। सो व्हेन वी आर हैविंग इन द सोशल सर्कल, सो वी हैव टू मैनेज, एंड लाइफ इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज। चेक करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं इसको। हम ये चीज समझ सकते हैं कितने टोटल इस वाले एक्सेस पर फोल्ड हुआ है। ये एक्चुअली रोटेटेड है, इसलिए अब कंफ्यूजन आ रही थी। ये हुआ इस एक्सेस पर है, बट ये वाला पार्ट ऊपर है, ये पार्ट नीचे है ना, लाइक दिस थिंग। सो अब देखते हैं इसको कौन से पार्ट पर फोक हुआ है, ये वाला। दिस ओपन ऑन दिस पार्ट, सो ये जो बना होगा कुछ इस तरह का, जाके कुछ ऐसा बन गया होगा, है ना, कुछ लाइक दिस। ठीक है, सो अब यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 + 7 आपकी टोटल एजेस आएंगी। तो काउंट कर लो इसमें कितना है। 1 तो ये चला गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो सकता है। 6 + 1 कैसा बता रहे हो भाई? इट इज 1, दिस पार्ट 1 1 2 3 4 5 6 7, भाई 7 होंगे ना, तभी तो गलती कर रहे हो आप। 1 + 7, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखा? 1, ऐसे 1 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ऑप्शन हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हटा दो इसको, बी कांट बी द राइट ऑप्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेकेंड, तो आपका ये टोटल होने चाहिए, ये हम लिमिट कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, इट कैन बी द राइट ऑप्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ओनली बी ऑप्शन गो। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये ओपन हुआ है, सो दिस पार्ट इज दिस, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। ये जो पार्ट है थोड़ा ऊपर है, बट इट इज क्वाइट बिग, तो ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। नाउ यू सी, ये वाला फेस आएगा, इसी के बराबर लगभग फेस ये होना चाहिए। ओके, 2 आर देयर। फिर एक छोटा सा पार्ट आना चाहिए, यस, स्मॉल 1 इज इट। फिर यहाँ पर एक पार्ट आएगा, और ये लगभग 2 बराबर होने चाहिए, इट इज दिस, और ये बड़ा वाला पार्ट है, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, डी विल बी द राइट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं सी क्यों नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आया, नाउ यू सी दिस पार्ट, इट इज लाइक इट। नाउ
यहाँ पर इतना पतला फाइन है, इट इज लाइक स्केल चेक करना है ना आपको, इट इज क्वाइट बिग, यहाँ पर बहुत छोटा दे दिया है, तो ये नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी बिग लाइक दिस, और इतना बड़ा भी नहीं हो सकता है। दिस इज हाउ वी यूज द ऑब्जर्वेशन प्लान एलिवेशंस, जो आपको प्रोपोर्शंस आते हैं, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। श्रीनिवासन, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई ए ऑप्शन इज नॉट द राइट वन? क्योंकि जो ये पार्ट खुला हुआ है ये इतना बड़ा नहीं होगा, इट हैज टू बी ओपन लाइक दिस, सो इट इज अ स्मॉल वन, हाउ कैन बी दिस बिग? भक्ति राजगुरु, डी, यस बच्चे, डी इज द राइट ऑप्शन। कुछ प्रॉब्लम एप्टीट्यूड वाले पार्ट के अंदर अभी समझना पड़ेगा। इट इज नॉट हैविंग, वी आर, समझो हम लोगों को है ना, वी आर नॉट हैविंग दिस फुल बैच, ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन पूरा प्लान नहीं है। अगर हमारा होता है देन वी डिस्कस द फुल क्लास लाइक 2 hour डिस्कशन ऑन जस्ट वन टॉपिक, एंड वी नॉर्मली डिस्कस, वी गिव द असाइनमेंट्स टू द स्टूडेंट्स, बट लिमिटेशंस हैं, टाइमिंग की प्रॉब्लम और पैसे की प्रॉब्लम है। यू जस्ट पे 249 रुपीज एंड वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, बट अगेन आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, ठीक है। व्हाट आई फील, एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिट टू one class only. I feel if you ask me that education should be free to all the students, और ये मेरा आइडिया भी है कि एजुकेशन हैज टू बी फ्री, बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोगों को ऑफिस चलाना होता है, अगर हमें पेमेंट नहीं मिलेगी तो वी कैन नॉट रन दी ऑफिस, जो असाइनमेंट बनाने होते हैं, जो बैक एंड पे काम होता है, द क्वालिटी विल डिग्रेड। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो बिलीव दैट वी आर ऑल्सो हेयर फॉर द अर्निंग द मनी, बट इट शुड नॉट बी कम ऑन द बेसिस और द एक्सप्लोटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट? किसी बच्चे के पास पैसे इतने नहीं है तो उसको जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन इज नॉट हैविंग द मनी, इट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया ऑफ द समवन दैट पर्सन विल गेट द एजुकेशन और नॉट, ठीक है। तो कई सारे एथिकल इश्यूज आते हैं, हम लोगों को सोल्व करने होते हैं, बट आप भी समझ सकते हो कि सो वी ट्राई टू लॉन्च अवर कोर्स एज रिजनेबल एज पॉसिबल, और ये शायद हमें लगता है कि 12,000-15,000 रुपये, बट ज़्यादा कोई बचता नहीं है हम लोगों को, like the material and the efforts we put in for the ArcGenesis. It has like it is just only 10 months, and we have reached more than 11,000 students just because of our quality and just because of your love given by the students. तो खैर चलो एक आध क्वेश्चन और देखना है। सर कैन यू प्लीज सेंड सम असाइनमेंट्स? विश्वजीत, वी कैन नॉट सेंड इट, द प्रॉब्लम है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि वी आर डूइंग फॉर द सोशल कॉज और हमारे लिमिटेशंस हैं, वी हैव टू स्विच अवर प्लेटफॉर्म एज वेल, सो हम लोग खत्म करना चाह रहे हैं। अगर आपको असाइनमेंट दे देंगे तो उनको चेक करना, और अगेन इट इज विल बी लाइक इट विल बी डिस्क्रिमिनेशन फॉर दोज स्टूडेंट हु पेड अवर फुल कोर्स, है ना? तो आप भी समझ सकते हो, लाइक फ्रॉम अवर साइड वी हैव सम लिमिटेशंस। आपको हम सेम चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं जो बाकी बच्चों ने को पेड, हम जिन बच्चों ने लाइक दे हैव ट्रस्ट ऑन अस और दे हैव पेड 15,000 रुपीज़, 12,000, 18,000 रुपीज़, तो उनके लिए नहीं होगा। बट ऑल्दो वी हैव मेड असाइनमेंट फॉर यू, इट इज़ गोइंग टू बी 50 क्वेश्चंस, और ये सभी के लिए हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट होगा, आज आपको शाम को मिल जाएगा, इन विच लाइक वी आर गिविंग 50 क्वेश्चंस ऑन दिस प्लान एलिवेशन मिरर एंड फोल्डिंग। हम लोग आपके लिए भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट लाइक अदर कोचिंग सेंटर्स। तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने डिसाइड किए हैं, और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एंड फॉर दी स्टूडेंट्स जिन लोगों ने पहला कोर्स लिया हुआ है उनके लिए तो रिवीजन होगा, बिकॉज ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके डाल दिए, ऑल्दो दे विल नॉट गेट द न्यू वन। No sir, it's not necessary to check for our practice only. Yes, I can understand. Vishwajit, I understand your thing. साहिब हमसे, यस, तुम तो पुराने बच्चे हो यार, तुम लोग तो अपने हर बार आ जाते हो, है ना? जहाँ पर बुलाते हैं हर बार पहुँच जाते हैं पुराने बच्चे मेरे। चलो ठीक है, खैर ये हो गया है। अभी आज का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर ही रोकते हैं। आई विल गिव यू 10 मिनट 15 मिनट जो रेगुलर डिस्कशन करना है। आज का जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट था खत्म हो गया है, एंड दिस वीडियो विल बी अपलोडेड सून। नेक्स्ट क्लास जो होगी 12 बजे होगी, आपको 11:50 पर आईडी मिल जाएगी। एट द सेम टाइम वी विल स्टार्ट, दिस वाज द फर्स्ट क्लास, तो मैंने आपको 5 मिनट डिले किया है, बट बिलीव मी फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल नॉट वेट फॉर अ सिंगल सेकंड फॉर यू। आई विल गिव यू 10 मिनट्स टू थे, आपको 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करना होगा, एंड आई विल नॉट स्टॉप विद फॉर एनीवन, ठीक है? क्योंकि अभी तक हमारे पास 170 स्टूडेंट्स हैं, सो अगर हम 1 मिनट वेस्ट करते हैं तो इट इज गोइंग टू वेस्ट एज लाइक 170 मिनट्स। आकाश, इट इज नॉट फॉर द नाटा, इट इज फ्रॉम द जेई। आपको मिल जाएगी उसके अंदर, मैं आईडी का देखूंगा। दिस द फर्स्ट टाइम, जैसा आप विश्वजीत आप देख रहे हो ना, इट्स माय फर्स्ट टाइम ऑल्सो। रात आपसे डिस्कस तो किया था, मेरा जो है फ्रॉम द ArcGenesis, वी आर नॉट लाइक इन अ फुल फंडेड इंस्टीट्यूशंस कि टीचर कोई और होते हैं, मार्केटिंग टीम अलग होती है, सो हम लोग इसलिए हमारी जो कॉस्टिंग बहुत कम आती है। तो
यू आर लाइक एन अ फैमिली फॉर मी अगले 3-4 दिन तक के लिए, उसके बाद भी रहेंगे। तो इसके लिए आपको, मुझे भी, मैंने आपसे पूछा है ना, वेन एवर आई नीड हेल्प आई विल आस्क यू कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो रात मुझे लगा कि आपको पता होगा, क्योंकि आज तो नए बच्चे हो तुम लोग, तुम्हें तो बहुत कुछ पता होता है क्या करने के लिए। तो खैर एनीवेज, जो आज की वीडियो है वो जो पढ़ना था इस टॉपिक का वो यहाँ तक ही है। द स्टूडेंट कैन लीव इट, जिन लोगों को टाइम बचाना है। और बाकी हम कुछ डिस्कस करेंगे, सम क्वेश्चन जो आपके रहते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक कि जैसा पूछा है कि सीसीए जो है वो नाटा के नंबर काउंट नहीं करता, इट इज फ्रॉम द जेई, ठीक है, वो गलत लिखा वेबसाइट के ऊपर। एक चीज़ और हमसे बात करूंगा सर, टॉपिक फॉर 12 पीसीएम मैं भक्ति मैं बता दूंगा उसको 12 के। सर आई हैव डन डिप्लोमा इंटीरियर डिजाइन, इज गुड आराम। हाँ, जे एसपीए के लिए आपको स्कोर रिकॉर्ड होता है जेई का, बिल्कुल। और आपको अच्छा स्कोर चाहिए, 99.9 परसेंटाइल चाहिए होगी आपको, तभी मिलेगा आपको। आर्किटेक्चर के अंदर कुछ खास की यूज नहीं होता है नॉर्मली, बिकॉज आर्किटेक्चर के अंदर स्ट्रक्चर वाला पार्ट आता है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैथमेटिक्स टर्म्स ऑफ इट। बट आर्किटेक्चर इज मोर अबाउट योर डिजाइन, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, ग्राफिक्स, ये बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें आती हैं। मैथमेटिक्स ना जरूरी नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स जरूरी है फॉर द जेई और फॉर द नाटा टू गेट द गुड कॉलेज। एक चीज और आपसे बताता हूँ, लाइक नेवर बिलीव ऑन समवन, नॉट बिलीव ऑन द आर्कजेनेसिस व्हाट वी आर सेइंग। मेरा कहने का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ वेबसाइट हैं जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज लाइक अ लिंक की ड्राइंग का एग्जाम होने वाला है, लाइक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है नाटा का, एंड यू वॉन्ट बिलीव सम स्टूडेंट्स दे कॉल्ड मी जस्ट 1 नाइट बिफोर द एग्जाम, सर ड्राइंग आएगा नहीं आएगा। सो द कोचिंग सेंटर इवन इंक्लूडिंग आर्कजेनेसिस ऑल्सो, डोंट बिलीव इट, गो टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करो, बिकॉज दे आर एंटाइटल्ड टू यू। अगर हम गलत बताएंगे, सपोज करो मैंने गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, व्हाट विल आई से, आई विल से कि मैंने तो आपको इनवाइट नहीं किया ना, आप आए थे, मैं दे रहा हूँ, नहीं हुआ। लेकिन नुकसान किसका हुआ, इसमें आपका हुआ, इट इज योर लाइक यू विल फेस द प्रॉब्लम। सो ऑलवेज बिलीव ऑन द ऑफिशियल सोर्सेज, डोंट बिलीव ऑफ समवन कोचिंग सम वन वेबसाइट, बिकॉज वहां पर टीम अलग होती है, दे आर नॉट वर्किंग ऑन डिटेल। तो वेबसाइट पर जाओ, चेक करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अदर एग्जामिनेशन एज वेल। आप कॉलेज जब पास आउट हो गए, एग्जाम्स होते हैं, इन कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स होंगे, सो ऑलवेज बिलीव ऑन द ऑफिशियल डेटा। Can you share the NATA based questions PDF on 2021? It is already NATA based questions, yes, it is already this paper is based, this paper is uploaded on the Telegram channel. No color can you mix to make primary colors, but green, violet is blue, orange. Yes Rupam, it is true. देखो ये बोलते हैं कि no color mix to primary color, ये ट्रू है, ठीक है। ये हम लोग कलर थ्योरी में डिस्कस करेंगे, उसको ढंग से पढ़ेंगे। ऑटोकैड कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, बिलीव मी, इफ यू वांट टू बिकम एन आर्किटेक्ट देयर इज नो नीड। मेरे पास, मुझे आई थिंक मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आई नो, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी क्लासेस नहीं लगाई हैं। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दी ऑटोकैड, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, बहुत सिंपल है। आप कॉलेज में जाओगे, व्हेन यू टेक द एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, व्हाट आई डिसाइडेड, लाइक हाउ आई इंप्रूव माई लाइक दिस सॉफ्टवेयर एंड ऑल दिस थिंग, whenever there is a submission of design is the main subject is going to be there for your architecture exam. So suppose there is a design brief that I have to make a hospital. So this time I decided that I will make the 3D visualization on the graphic soft या फिर ArchiCAD या फिर Revit, और बस नेट पर चेक किया, then I start downloading this thing, थोड़ा सा ट्यूटोरियल देखा, AutoCAD देखा। Don't waste money for joining any coaching center specifically for the softwares. सीसीए के लिए परसेंटाइल आपको देखनी पड़ेगी, उसमें आपको भी मतलब आपकी रैंक अराउंड 1500 to 2000 चाहिए होगी। देयर आर ओनली 4 सीट अवेलेबल फॉर 4 to 5 सीट्स फॉर द ऑल इंडिया कोटा। आर्किटेक्चर इज एन गुड कैरियर, एक वीडियो बनाकर डाली थी, उसको चेक कर लेना। और इन स्टार्टिंग आई हैव डिस्कस इट, राइट। ऐसा बताना बहुत गलत है ना अदिति, कैसे बताऊंगा आपको अच्छा है गलत है, इट इज वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है। सर प्लीज टीच अकॉर्डिंग, वी कैन नॉट चेंज दिस पैटर्न, राइट। वी हैव गिवन यू द 6 क्लासेस, हमें बेसिक को कवर करना है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कंप्लीट द सिलेबस, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द फुल सेशन फॉर द 60 आवर्स। और 60 घंटे काम 10 घंटे में नहीं हो सकता है। अटेम्प्ट पैटर्न विल बी द सेम, मोस्ट प्रोबब्ली इट इज गोइंग टू द सेम, बट आई फील द लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल बी रिड्यूस्ड, थोड़ा सा कम करेंगे वे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ऐसी हालत हो जाएगी बच्चों की। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन दे हैव रिड्यूस्ड द क्वालिफाइंग मार्क्स फ्रॉम 75 to 70। Most probably it is going to remain the same, but they can change it. They will reduce, I feel they will reduce the difficulty level. Sir, please post on video college rank and percentile. We will do it, but after, this is not the time to discuss about it. Your main target should be to getting the highest number possible in NATA and JEE. These are the kind of the wastage of time. It is no use of having कि कितनी percentile चाहिए आपको, आपका target होना चाहिए to getting the maximum number, है ना। Beggars can't be choosers, सुना है ना।
इफ़ यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स तो क्या फ़ायदा उसका, फिर सोचते रहोगे ये कॉलेज मिल जाएगा, ये हो जाएगा, यू विल क्रिटिसाइज द रिजर्वेशन, और यू विल क्रिटिसाइज की तबीयत खराब हो गई थी, कोविड था। नेवर क्रिटिसाइज इन योर लाइफ। सब सॉफ्टवेयर आना जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। सॉफ्टवेयर आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डोंट वरी। सॉफ्टवेयर इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको एयरटेल कनेक्शन चाहिए, आइडिया कनेक्शन चाहिए, इट इज़ नॉट सो इंपॉर्टेंट। अगर आप किससे बात करना चाहते हो, यू विल राइट अ लेटर इटसेल्फ। आई नेवर वर्क फॉर द सॉफ्टवेयर आफ्टर कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, क्योंकि मुझे काम होता नहीं है। मेरा सिंपल ये होता है कि आई जस्ट ओनली वर्क फॉर इट, कि पेपर पेंसिल पर मैं काम करता हूँ। ये कुछ जरूरी नहीं है, इट इज़ लाइक वेरी डिफरेंट थिंग। जे के लिए आपकी बोर्ड्स और आपकी जो नाटक का स्कोर आना चाहिए 50%, 50 नाटक के, आई थिंक 150 प्लस आना चाहिए। सर इफ वी क्रैक सेप्ट एंट्रेंस, यस, वन डिपेंड करता है ना महेश, इट डिपेंड्स ऑन द कट ऑफ इज वेरी डायनामिक, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ द सीट, इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। फॉर एग्जांपल, दिस ईयर पेपर वाज क्वाइट डिफिकल्ट एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव गॉट लेस मार्क्स, तो इस बार कट ऑफ कम चली जाएगी। शिवम रावत, हाउ टू इम्प्रूव माई ड्राइंग। यार कुछ वीडियोस बना के हम डाली हुई हैं, वी हैव अपलोडेड आई थिंक 10 वीडियोस ऑन, देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन इन अवर चैनल, यू जस्ट वॉच इट, उसमें काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। 30 सेकंड वाले क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन, तो उसमें आपकी क्वेश्चन आएंगे। डू वन थिंग, आपको इमेज खोलो और मे बी कोई मूवीज वगैरह में देखा होगा तो पॉज करो उस वीडियो को, ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, आपके इंप्रूव ऐसा नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको ये बॉक्स दिखाई दिया है, आपको 30 सेकंड के लिए दिस स्लाइड इज देयर, सो ट्राई टू चेक इट 1 2 3 4 5, ये दे कैन आस्क यू कि हाउ मेनी ऑप्शंस आर हैविंग द 12 फेसेस और 10 फेसेस, तो आप ट्राई करो ऑब्जर्व, इट इज ऑल डिपेंड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। नाटा में रिटन क्वेश्चन आए थे, हाँ रिटन क्वेश्चन आए थे बिल्कुल। हाउ टू फाइंड, अरे अनुषा यार अभी कौन सा टाइम है इंटर्नशिप का नीदरलैंड जाने का, पहले कॉलेज में एडमिशन तो ले लो। आई विल बी देयर फॉर यू, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपको बता दूंगा आपको मैं सब चीज़ें, बट दिस इज नॉट द टाइम, है ना। सो कैन आई बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ द अनदर स्टेट गॉट एडमिशन? नहीं, जे के लिए नहीं है, आपको महाराष्ट्र का ही होना पड़ेगा। रिडल्स की प्रैक्टिस कैसे करें, तो हम लोगों ने इंस्टाग्राम पर डाला हुए हैं लगातार, तो आप उसको कर सकते हैं। सर इज देयर एनीथिंग लाइक ओनली थ्रू नाटक क्लास? हमारा कॉम्प्रिहेंशन बैच चलता है, आपने शायद फॉलो नहीं किया होगा, तो उसके लिए हम डेडिकल तैयारी कराते हैं। इट इज़ लाइक द फंड रेजिंग इवेंट, तो 3 दिन के लिए जो नॉर्मल डिस्कशन है, इसलिए हमने बहुत कम भी रखा है। यू आर ऑल्सो गेट द मॉक टेस्ट एंड ऑल दिस थिंग। सर कैन वी राइट इन जी एडवांस आफ्टर जेई मीन्स पेपर एज वी आर फ्रॉम डिप्लोमा? डिप्लोमा का थोड़ा चेक करा, आई थिंक डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ दे सकते हैं, डिप्लोमा के अंदर होता है। आई विल यू हैव टू चेक ऑन द इंटरनेट, मुझे डिप्लोमा का थोड़ा जानकारी नहीं है, मैं पूछ कर बता दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूँ। डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन एंड सेक्शंस? सेक्शन अलग चीज़ होती है, सेक्शन किसी भी एंगल पर कर सकते हो। सेक्शन को, ये क्वेश्चन अच्छा है जिसने पूछा है बच्चे ने, तो सेक्शन का मतलब क्या होता है, दिस इज लाइक एलिवेशन आप सामने से देखते हो, सेक्शन का मतलब क्या होता है, प्लान इज ऑल्सो ए सेक्शन। अगर हम बात करें, ये सेक्शन का है और ये प्लान एक छोटा सा सबसेट बनता है, क्योंकि विदाउट सेक्शन यू कांट हैव द प्लान। आप काटते हो ना सेक्शन का, है ना, जिसे कट करते हो, तो दैट सेक्शन। सेक्शन आपको वर्टिकल भी काट सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी काट सकते हो। कैन आई नो योर 1 month कोर्स फी ओनली फॉर नाटा? प्रवीण, दिस टाइम वी आर नॉट हैविंग एन एनी प्लान फॉर इट, इट इज द लास्ट प्लान, इट वाज द लास्ट। मेक अ वीडियो प्लान वेस्ट क्वेश्चन फॉर द फेमस बिल्डिंग एज ए पोस्ट लिस्ट ऑफ द सेंट पीटर्सबर्ग। यस, हम लोग काम कर रहे हैं, वी हैव कवर्ड आई थिंक 15 के आसपास हमने बैच में कवर करा दिए हैं, एंड इन फ्यूचर उनको वीडियो मिलती रहेंगी, तो वो भी चीज़ होती है। वी विल ट्राई कि कुछ आपके लिए भी बना दी जाए। आप समझो, लाइक देयर इज एन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माई साइड। अगर मैं सेम चीज़ आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो देन बाकी लोगों के लिए गलत हो जाएगा ना, दोज हैव पेड फॉर कॉम्प्रिहेंशन प्लान। ये भी चीज़ है ना, एथिकल इश्यूज भी आते हैं। वी आर नॉट लाइक दिस थिंग, बट अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि वी हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा फॉर आवर स्टूडेंट्स। पर्सनल टेंशन होती है, उनके रेगुलर डिस्कशन होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। चीज़ हो, लाइफ इज़ वेरी ब्रूटल, है ना। एक बड़ा प्यारा कोट है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बट एक्स स्ट्रिक्ट, लाइक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज। तो चलो खैर, देर इज नो क्रैश कोर्स फॉर एज ऑफ नाउ, there is no crash course for as of now. Maybe we can think about it after this batch, but most probably we are not having the other course for it. It is like बस हो गया, अभी 4 बैच हो गए हमारे, that's it। जिन बच्चों को पढ़ना था सब कुछ आ गया है, और
Sir, how to choose the option in the principle based question? Is it there any PDF or principles? No, it is like theory of design की क्लास में लेता हूँ अपने बैच में, और बच्चों को 3 दिन हम लोग वी वर्क फॉर दी 4 to 5 क्लासेस फॉर द थ्योरी ऑफ डिजाइन, और सब बच्चों को आ जाता है. इट इज़ वेरी इजी थ्योरी ऑफ डिजाइन कैसा प्रिंसिपल करना है, ये सब चीज़ें आती हैं. तो इट इज़ थ्योरी ऑफ डिजाइन क्लास में होता है. तो आपको थ्योरी ऑफ डिजाइन पढ़ना पड़ेगा. इफ यू आर वेरी गुड इन थ्योरी ऑफ डिजाइन देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द बेसिक प्रिंसिपल्स. What are the best college in South India? Check on the internet. JJ महाराष्ट्र के देर आर वेरी गुड कॉलेज. कमला उमला कॉलेज जो हैं अच्छे हैं. 94 is a good in first attempt. It is a average score, like it's average in the first attempt. Will questions be changed in the second attempt? How do I know? It depends. ये को बताता तो है नहीं. Most probably it is going to be the same. So we cannot cover extra information, extra thing. Whatever we have, we will only cover whatever we have right in the classes. आपको बताया पूरा शेड्यूल. पहला क्या होगा, ये एप्टीट्यूड पार्ट. सेकंड प्रोमिनेंट बिल्डिंग, हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री. उसके आगे हम कुछ और नहीं कर सकते. विल यू टीच विजुअल? नो, वी आर नॉट गोइंग टू टीच द थ्योरी ऑफ डिजाइन. ठीक है. सो ये सोहम, बाय बाय, टेक केयर बच्चे. सोहम, टेक केयर. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. प्लीज टेक मोर टाइप this type of the crash course before exam. We have limitations. हम लोग को थोड़ा नया काम स्टार्ट करना है. आर्क जेनेसिस इज जस्ट अ पार्ट टाइम फॉर मी. क्या क्या बताना है आपको? अथर्व मेगवेयर, क्वेश्चन मिस हो गया आपका. बाय बाय, सी यू एट 12. दोबारा लिखो. थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. भक्ति राजगुरु, थैंक यू बच्चे. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीवन. गौरी, थैंक यू. चलो अभी हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं एंड सी यू एट 12, जहाँ पर हम लोग प्रोमिनेंट बिल्डिंग पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी अराउंड 100 बिल्डिंग्स. थोड़ा सा उनके बारे में देखेंगे. इट इज गोइंग टू बी आई थिंक 1 hour 15 minute क्लास. दैट्स इट. 30 सेकंड का वो 30 सेकंड क्वेश्चंस के लिए यू हैव टू बी क्वाइट ऑब्जर्वेटिव. कोई भी इमेज जा गूगल पे चेक करो, कोई कार्टून की इमेज ले लो, ट्राई टू ऑब्जर्व इट. कोई पैटर्न देखो तो उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो. आपको लिंक सेंड कर दूंगा मैं इन द क्लास ग्रुप. गोपाल, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश फॉर नाटा क्वेश्चन पेपर. मैंने वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पर, डिटेल में जाकर देख लो. इंग्लिश कैन नॉट बी इम्प्रूव इन 1 month और 2 month 3 month. थोड़ा ये प्रॉब्लम रहती है. नाटा वाले सोचते नहीं है. COA इज लाइक वेरी इरेस्पॉन्सिबल इन दिस रिगार्ड. तो सोचते नहीं है. लेकिन आपको 30 जो इंग्लिश है इम्प्रूव करने के लिए आई विल सजेस्ट यू टू रीड न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर. इंग्लिश न्यूज़पेपर भी इंडियन एक्सप्रेस. How to practice flow plan? I mean, how to identify the suggestion for PDF. Sahitya, I cannot have. I don't know have any PDFs. We work for the plan-based questions, but again, we have shared some videos on the YouTube, and for that you have to join our. You should join our crash course if we launch our crash course. अभी हमारा कोई crash course भी नहीं है, तो वो चीज़ है. कोई ऐसे PDF वगैरह नहीं है. It is like we have to work for it. मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ क्योंकि this is also first time for us. और इसीलिए हमारा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग रात को मैं सोता ही नहीं हूँ, लाइक बिकॉज इन द मॉर्निंग वी हैव द क्लास. तो हम लोग उसमें काम करते रहते हैं. बट आपको कहीं मिलेगा नहीं. आई विल नॉट सजेस्ट टू एनी बुक क्योंकि देर इज नॉट अ सिंगल बुक अवेलेबल फॉर दिस अ न्यू पैटर्न और सब कुछ जो है. तो ये डिपेंड करता है कोचिंग टू कोचिंग हाउ दे आर वर्किंग फॉर इट. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग एनी कोचिंग सेंटर, बट मुझे बाकी का नहीं पता है. सर आपने वो इंग्लिश के लिए बुक सजेस्ट की थी ना इंग्लिश, तो उसने नाम क्या है? आई मीन वोकेबलरी कैसे? वीडियो में जाके देख लो ना. वो क्या थी उसका नाम? एक बुक का नाम तो है, उसका नाम था मेक वर्ड पावर, कुछ ऐसी था. वर्ड पावर मेड इजी, कुछ इस तरह का नाम था. मैं शेयर कर दूंगा. सर विल यू सेंड एनी PDF फॉर GK? आई विल नॉट शेयर एनी PDF. देयर विल नॉट बी शेयर एनी काइंड ऑफ द PDF. राइट, कुछ भी शेयर नहीं होगा. आपको सिर्फ क्लासेस मिलेंगी, असाइनमेंट एंड मॉक टेस्ट जो भी होगा हम लोग दे देंगे. और GK के लिए वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड 10 वीडियोस. आप उन जा चेक करो. सेंड अगेन नाटा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इन टेलीग्राम चैनल. उस पर पढ़ा हुआ यार, चेक करना मिल जाएगा आपको. प्लीज शेयर द नेम ऑफ द बुक. मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है. कोर्स सेम दिन बिफोर नाटा सेकंड प्लीज इन्फॉर्म सर. आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. लाइक वी आप हमारे यूट्यूब पर फॉलो करते हैं तो वी आर गिविंग दी ऑल अपडेट ऑन द यूट्यूब. तो आपको वहाँ पर मिल जाता है कि सारा का सारा. अभी चलो मैं देख लूँगा, अगर मुझे होगा तो आई विल शेयर इट अगेन. राइट. Okay, so thanks for joining. Thanks for your precious time. I have to put on the saving.
वो पता चलता है, डिपेंड करता है बोर्ड्स के टीचर्स के ऊपर या उनके जो इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर, ठीक है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सी यू अगेन एट द 12, बाय बाय। आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो डिस्कशन, सी यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ yourself, have a good day, bye bye, take care, see you, bye bye। And meeting for all।